The topics are, I think, related to personal administration, civil services, techniques of administrative improvement. Those are the topics, which we have dealt earlier. So the most important in this aspect, what if you are talking of personal administration, है ना, जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या है, ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम, सपोज यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, यू वांट टू join the Indian government of India. So you need to have certain qualities. What are those qualities? What are the service conditions? What are the pay privileges? What are the kind of classification, whether we follow rank classification or position classification? In case of UK or India, we have the rank classification. What are the features of rank classification? Why we have opted for rank classification over position classification? Why USA follow this position classification? What are the key characteristic of position classification? So here the question, normally the questions are asked on the classification, whether it is rank or position. Then if you talk about personal administration, then various aspects from recruitment, what are the various policies, what are the function of UPSC, recruitment agencies, what are the independence of recruitment agencies. Then we talk about the training. Once you are recruited, then you will be sent to the training institutes. So various training institute provisions, for especially for example, Mission Karmyogi that has been launched, capacity commission has been launched. How they are improving the efficiency of administration, what Woodrow Wilson talked earlier. That means all the the objective should be to increase the efficiency and effectiveness of governance. So in this aspect, personal administration, we have discussed in detail about the various traditional or modern training techniques. Then once you are trained, then you will be posted in different positions, and a position, posting, transfer, everything will be dealt in the personal administration. DOPT deals with all these affairs. Then with regard to the domain classification, domain specialization, because now there is a talk of lateral entry that we have discussed. Should we try to import the talent from private sector? To what is the feasibility of lateral entry? Should we go for it? We have discussed the arguments in for and against of lateral entry. And then with regard to techniques of administrative improvement, we have discussed about work study, method study, time and motion study. Then decision support system, management information system. We had discussed briefly about the critical path method or PERT CPM, that we have discussed. Excuse Then me, sir? yeah please. सर इस वाले टेस्ट बुकलेट में कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड है? हाँ, इसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्विसेज है, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट है, एंड आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला टॉपिक्स है ना. ओके सर. So these are the major topics, civil services, that is various application of principles of personal administration in case of India, that is civil services. उसमें UPSC है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना. तो यूपीएससी का फंक्शंस पे क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज पे आ सकता है, या JCM मैकेनिज्म जो है, जॉइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म, कि आखिर वो स्टाफ्स और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कैसे उसको डील करना है, व्हाइटले काउंसिल क्या है. तो ऑल दोज एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस. तो दैट इज द keywords. Once you have the command over the keywords, so idea is to use those keywords. Once you have the command, then you can use them in the answers, है ना. तो just look at the question first. We'll try to go through the questions, then we'll discuss in detail. तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो एग्जामिन करना है. डू यू थिंक, अब हाउ डू यू रिफ्रेम द क्वेश्चन, डू यू थिंक that information technology is bringing efficiency? How it is bringing efficiency? To what extent it is bringing efficiency, है ना. Does it bring transparency in the public governance or administration? So all your thinking process should be in that direction. You should try to, if it is being asked to examine, that means you have to see the what is, to what extent this information technology has brought transparency and efficiency. What are the aspect of efficiency, what are the aspect of transparency, and to what extent all the information IT tools and techniques what we are using has helped in bringing the efficiency and as well as transparency. These two major headings should be covered in detail with some relevant example, case study, relevant data. Then you can also bring out some challenges like the digital divide or the data with regard to internet intensity, density of internet, telecommunication density. All those data can also be used. Various reports regarding digital divides of World Bank also can be used. So those are the examples, and some success story also you can bring about how IT has also, for example, section 4 of RTI,
proactive disclosure of information. So that was being, everything is being publicized on the website of MyGov initiative or Pragati. Everything is done in a transparent manner. And how efficiency has been improved because like the MIS system, management information system, decision support system. So now we have big data analytics and artificial intelligence. So all those things, they are, those are the aspect of information technology, and that is being, used in the administration to bring efficiency and transparency. That should be the way you have to tackle the question. And examine है तो you need to ask to what extent or do you think, है ना. So that is the way you can reframe. Then second question, position classification attempt to establish a triangular relationship between the duties and responsibilities, है ना, and the working conditions and the qualifications which are required. तो हम लोग पोजीशन क्लासिफिकेशन में यही तो एडवांटेज है कि देयर इज अ काइंड ऑफ every position is defined, what are the skills which are required, what are the qualifications which are required for a position, है ना. And then what is the working conditions, what are the kind of work you have to improve, how motivation, how salary, privileges, everything is done, how what are the duties and responsibility of various positions. So it is a kind of a specialized administrative system, especially in the USA, they follow this position classification. So you just need to elucidate, and you need to talk about the various features of position classification, and then establish the how it is. It contains three aspects. That is, the duties and responsibilities are based on what kind of qualifications are required. If you have the requisite qualifications, then you can perform those duties and responsibilities, and you will be also provided with certain working conditions. You will be facilitated, enabled, empowered. So those are the aspects that you need to highlight and establish the interlinkages, and a relationship पे focus होना चाहिए. Then second question, analyze the relevance of whitelism in the contemporary employed. तो ये whiteley council ये सब concept क्यों आया था? Ultimately, in the industry, even the Taylor talked about mental revolution, because the employee, manager and worker always had the conflict. एंटोगोनिस्टिक रिलेशनशिप था. मैनेजर क्या सोचता था, वर्कर को, है ना, मैनेजर सोचता था वर्कर्स, दे आर लेजी, दे डोंट वांट टू वर्क, दे वांट टू जस्ट स्किप द रिस्पांसिबिलिटीज. और वर्कर सोचता था मैनेजर क्या कम पैसे देके एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, कम पैसे देके काम करा रहा है. तो देयर वाज ऑलवेज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. वर्कर्स स्ट्राइक है, ट्रेड यूनियंस है. तो अब उसको डील करना है. तो जैसे हम लोग टेलर को, है ना, टेलर हैज प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन इन द वेस्टर्न कंट्री. अदरवाइज जैसे मान लो रसिया में, है ना, कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था, वर्कर्स रिवोल्यूशन आया, रिवोल्ट आ गया. तो वर्कर्स क्लास का मूवमेंट को कहीं ना कहीं अगर कैपिटल, इसलिए कई बार, है ना, टेलर को गॉड ऑफ कैपिटलिज्म या सेवियर ऑफ कैपिटलिज्म की तरह भी कई लोग राइटर्स ने डिस्क्राइब किया. बिकॉज उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में एक मेंटल रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट लाया, उससे क्या हुआ, वर्कर्स और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप बढ़िया हुआ, एक माइंडसेट आइडियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस हुआ. और फिर बाद में जाके बहुत सारी कमिटी बना था, वाइटले कमिटी. तो उसने रिकमेंडेशन दिया कि व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, हाउ देयर कैन बी बेनहोमी, है ना, रिलेशन, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो. तो वहां पे व्हाइटले काउंसिल बना दिया उसी के नाम पे. फिर इंडिया में सेम इसी पैटर्न पे अपने पास ज्वाइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म है. और अभी जो परफॉर्मेंस देखा गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म हैज रिजल्टेड इनटू इन द फेवर ऑफ वर्कर्स, है ना. दैट मीन्स स्टाफ्स, वर्कर्स जो अलग अलग, है ना, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स, स्टाफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, दे विल हैव सर्टेन ग्रीवेंसेस, है ना. सैलरी से हो सकता है, सर्विस कंडीशन से हो सकता है, प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर. तो वेरियस, सर्विस कंडीशंस रिलेटेड क्वेरीज कुड बी देयर और कॉन्फ्लिक्ट कुड बी देयर. दे फॉर्म एसोसिएशन ग्रुप्स एंड दे बार्गेन विद द. या सर इसके मॉडल आंसर्स नहीं है? हाँ है, वो डिस्कस करेंगे. जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ्स. ठीक है, विल जस्ट स्कैन थ्रू द आंसर आल्सो, डोंट वरी. ठीक है. तो व्हाइटलिज्म मतलब एक आइडिया समझना जरूरी है कि एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस इंपॉर्टेंट, और व्हाइटलिज्म कैसे उसको सॉल्व किया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एंड हाउ व्हाइटलिज्म ट्राई टू सॉल्व इट एंड एग्जामिन इट्स relevance in the contemporary time. So this is how you have to look at the question. Then HRD, human relation, was never as important in the present time, for the field of power. How do we justify the statement? The human relation development, ये जो concept आया 1990s के बाद हम लोग जो देखते हैं, जो गुड गवर्नेंस का फेज आया, या फिर तो अब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब क्लासिकल थिंकर क्या सोचता था कि, है ना, कॉग इन द व्हील टाइप, मशीन लाइक मॉडल, स्ट्रक्चरल फोकस, प्रिंसिपल्स पे ज्यादा फोकस. फिर धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रिलेशन आया और बिहेवियरल थिंकर्स आया,
पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर्स है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो नाउ देयर इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स, है ना। इफ यू हैव द, especially in the service sector, what we see with the growth of service sector, people are becoming more important than any other instrument or any other machine or mechanism. That's why there is too much focus on human resource development, skill development, training is there. There is too much emphasis on training. That is also visible through the mission Karmyogi that government has launched. Capacity commission, has been launched. So it has, was never as important as in the present time. So do you think human resource very important? And how do we justify? Because of changing nature of governance. तो वो है ना, we should try to link it with that, post npm development also. Governance है, good governance है, या collaborative governance है. Now there is a requirement of leadership, different kind of leadership, team making, team building activity. सर ये जो क्वेश्चन है मतलब इसको इस चीज से लिंक करना है, स्टेट एंड मार्केट रिलेशनशिप में जो चेंजिंग ट्रेंड्स है उस चीज से। हाँ, मतलब वो डेट इज आल्सो लिंक, है ना, वो एक्सपेक्ट वो भी आएगा। मार्केट और स्टेट का जो डिबेट है ना आजकल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, रेगुलेटर का एजेंसी। अब रेगुलेटर ब्यूरोक्रेटिक टाइप तो हो नहीं सकता है, लाइसेंस परमिट कोटा राज वाला टेंडेंसी रखेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो नाउ देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल सेट व्हिच आर रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई यहाँ पे जैसे मान लो अभी लेटरल एंट्री क्यों किया जा रहा है, अल्टीमेटली वी आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द टैलेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ, या जो प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट उसको ला रहे हैं, है ना। तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब कुछ बढ़ेगा, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, डोमेन स्पेशलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी दैट शुड बबल इन योर माइंड once you brainstorm the questions, and then you try to link it with some example, है ना। इनिशिएटिव जस्टिफाई करेंगे, सम इनिशिएटिव भी डाल देंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट आर द विजुअल चेंजेस इन द गवर्नेंस विथ एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया और अदर कंट्री दैट यू कैन राइट। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ट्रेनिंग एम्स एट ब्रॉडिंग द एप्टीट्यूड एज वेल एज एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज। जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का है तो डायरेक्ट एटीट्यूड से लिंक है। एप्टीट्यूड हो गया तुम्हारा जो है ना स्किल्स है, बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स, उस पर फोकस। तो ट्रेनिंग का काम क्या है, यही तो उसको सबस्टेंशिएट करना है, सिंपल, विद सम एग्जांपल और इनिशिएटिव। इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग टेक्निक्स, है ना। ट्रेनिंग टेक्निक्स हमने मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स भी देखा। तो उस पे किस प्रकार इफेक्टिवनेस किस प्रकार डिपेंड करता है ट्रेनिंग टेक्निक्स पे। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं, एनालाइज वेदर द चेंजेस इन द ट्रेनिंग टेक्निक्स हैव केप्ट पेस विद द चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स। अभी भी हम लोग क्या ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज करते हैं पेड हॉलीडे की तरह, और जो रोट लर्निंग है या ट्रेडिशनल लेक्चर बेसिस पे जो ट्रेनिंग हो रहा है अभी भी वो प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लिमिटेड एज ए लिमिटेशन इन द करंट ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जो है ना, हैज केप्ट पेस विद द चेंज, है ना। जो ऑब्जेक्टिव है पवेड का और जो ट्रेनिंग टेक्निक्स जो अडॉप्ट किया जा रहा है, इज इट कॉम्पेटेबल, है ना। यानी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ पवेड हो गया एक तरफ, how it is changing, because public administration deals with the affairs of the state, it is very dynamic, very changing. So obviously what is happening, if you have to look at the training, whether training techniques has undergone changes as per the need, as per the demand of the time, है ना। तो वो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू हैव टू, तो that we have to discuss. Then we have the distinguish, है ना, इस डायरेक्ट क्वेश्चन एथिक्स में भी आया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। उसमें अगर मान लो डिस्टिंग्विश करना है तो उसको आपको की फीचर्स लिखने, कंडक्ट में कि रेगुलेट करना रेस्ट्रिक्टिव होता है, और एथिक्स में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, इनेबल करते हैं। तो जो बेसिक आइडियोलॉजी उसको डिस्कस करना है, ठीक। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होता है, एक इज प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंटली critiquing the decision making standards based on core social values that can be discovered within the reasonable organizational boundaries, and that can be defined subject to personal and professional accountability। डेनहार्ट का स्टेटमेंट, उसी को एक्सप्लेन करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होता है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, है ना। यू हैव टू ब्रेक डाउन द कीवर्ड्स, उसको बस रिलेट करके एलोबरेट करना है, सिंपल एक्सप्लेन करना है ना, विद सम एग्जांपल्स। कोड ऑफ कंडक्ट, पब्लिक सर्विस एक्ट, ये सबसे आप, या ARC 2 का रिकमेंडेशन है ना, गोलान कमेटी का रिकमेंडेशन, वो सब आपको मेंशन करना है। वेबेरियन मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड करियर डेवलपमेंट इन द फील्ड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियस अंडर सीरियस चैलेंज। डू यू थिंक एंटी वेबेरियन जो डेवलपमेंट हमने देखा है ना, एंटी वेबेरियन, पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट, हाउ द मेरिट हैज बीन चैलेंज, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, द करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, इस सब पे भी कई सारे, है ना, चैलेंज है। जो वेबेरियन हायरार्किकल टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था, उसमें क्या क्या चैलेंज है।
तो अब उसमें हमको क्या दिखाना है, लिमिटेशन है ना, पहले तो की फीचर्स लिखने हैं रिक्रूटमेंट और करियर डेवलपमेंट का, देन वी हैव टू हाईलाइट द लिमिटेशंस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना, या करंट इनिशिएटिव्स क्या लिया गया उसके बारे में बात करना है। वर्क स्टडी इज ए टेक्निक ऑफ, है ना, टेक्निक व्हिच इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेस वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो वर्क स्टडी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी आप मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसका काम क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव दिया हो उसको फुलफिल करना है, तो काम करने का तरीका, मेथड्स, रूल, जैसे मान लो टेलर ने दिया था वर्क, तो वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, दीज आर इंपॉर्टेंट, उसी को एलिब्रेट करना है बिना काम को पता हुआ, है ना। इट्स नाउ फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और Like राइट टू sir, IDC model, आईडीसी, intelligence हाँ है आईडीसी, है ना, design and choice. साइमन का, यस। Yes sir. तो वर्क स्टडी इज वेरी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिविटी, यू नीड टू स्ट्रीमलाइन द वर्क, है ना। सिंगल विंडो क्लियरेंस क्यों आजकल डिमांड है ना, सिंगल विंडो होना चाहिए, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस है, एवरीथिंग हैज टू बी स्ट्रीमलाइन, तो अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी, एनर्जी का ऑप्टिमाइजेशन होता है, और है ना रिसोर्स को अच्छे से यूज करते हैं, दैट ओवरऑल इम्प्रूव द, that these are part of techniques of administrative improvement, that topic we have discussed. The disruptive nature of information technology has changed the contour of e-governance in last one decade. See, so much radical changes, अगर IT जब साइंस टेक में भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन, है ना, टेक्नोलॉजी है, तो एवरीथिंग दे हैव द डिसरप्टिव नेचर. Now decision making, the way we are taking the decision, evidence based policy making has been made possible because of technological advancement. So every, all the aspect of administration, how the various aspect of administration you can also think or imagine, visualize in terms of the syllabus topics, है ना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में, फिर जाके तुम्हारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हाउ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग द, तो अब देखो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड द कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट नहीं, हाउ डू यू डेवलप दैट, ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, है ना। अब नाउ लिंक इट विद द आईटी, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ administration, you'll have very good answer, and a long Like sir, question. cyber security and Yes, privacy yes, yes, breach, definitely, these all are these the part things. of governance, है ना। तो Cyber ई गवर्नेंस, crimes. डिजिटल गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नेंस 2 आ गया, है ना, एनपीएम जो स्टेटमेंट दिया जाता है, एनपीएम इज डेट, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा गवर्नेंस, दोज आर Yes द sir, स्टेटमेंट दैट, colonization, digital हम्म, colonization. बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो दो आर द थिंग्स, है ना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और फिर जाके उसके की फीचर्स, है ना, वी कैन हम मेंशन इट। परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, सपोज ऑल ऑफ यू बिकम आईएएस ऑफिसर एंड देयर हैज टू बी अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म, है ना, तो हाउ इट कैन सर्व एज ए टूल फॉर इंटीग्रेटिंग पर्सनल गोल, है ना, विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो फ्यूजन हमने एर्गारिस का, है ना, एर्गारिस का फ्यूजन प्रोसेस देखा, पर्सनलाइजेशन वर्सेस एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या करते हैं, है ना, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को परफॉर्म करने के लिए, या उसको इंसेंटिवाइज करेंगे किसके लिए, जो डिटरेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना। तो एनालाइज द नीड फॉर ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो is it possible to have the complete of a proportional performance appraisal? Not possible. Subjectivity होगा, objectivity, but the target should be to maximize the objectivity in the performance appraisal. क्यों, क्योंकि जैसे मान लो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आता था, तो वहां पे क्या डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स होता था, बायसेस ऑफ सीनियर वाज रिफ्लेक्टेड, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा था, इससे क्या होता था, ओवरऑल it was de-incentivizing the talent, or it was demotivating for the individuals who were very good at implementing the laws, or not ready to bow down within any kind of public political pressure. अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी आ Yes रहा sir, है जैसे, demotivating for the honest officers, वेरी efficient गुड। and honest officers. तो आजकल जैसे मान लो सेवत्तम मॉडल है, पुलिस है ना, या फिर जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ऑल दीज आर इवन 720 डिग्री अप्रेजल जो हमने डिस्कस किया, एवरीथिंग इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ performance of individual who are working in the organization, है ना। suppose you become the prime minister or chief minister of any state, obviously you want that, since public money is being wasted on you, है ना, on the officers who are working under you as a head of the government. So what you want that all the individuals who are working, they should work towards the organizational goal, that is the welfare objective, empowerment objective, developmental objectives. And if some officers who are involved in corruption, though their name must be, their root should be removed from the organization, है ना। पुलिस वाला जो है सेवोत्तम मॉडल है, 360 अप्रोचल, नाउ वी हैव सीन करंटली गवर्नमेंट हैज रिमूव मेनी ऑफ द इनएफिशिएंट ऑफिसर्स,
until unless we have the objective performance appraisal, otherwise there will be lot of criticism कि यहाँ पे biases है, political biases, ये सब तो challenges तो है performance appraisal करना, क्योंकि governance is very subjective, very comprehensive, है ना. How do you assess the performance of a district magistrate? Can you make some parameters? Can you bring out some, indices where you can assess the performance of a bureaucrat, an officer working in a particular department or in a particular field area district? तो वही एक चैलेंज है. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अगेन, it is very dynamic aspect in the public administration. The quality, the quality of performance appraisal methodology will determine, to some extent, the effectiveness of public organization or the performance of individual who are working in the organization. So why do we need the, objective performance? अगर subjective होगा तो क्या होगा, है ना. subjective biases है ना, partisanship है, neutrality violate होता है, it is against the spirit of public administration. उस टर्म में आपको एनालाइज करना है ना. तो ट्राई टू लिंक इट विद द फील्ड एक्सपीरियंस और प्रोवाइड इन प्रैक्टिस जो फील्ड में है, हेडक्वार्टर है और फील्ड में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप यू कैन थिंक अपॉन इट, है ना. एंड यू आल्सो हैव टू हाईलाइट सम लिमिटेशंस कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव द कंप्लीट ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. राइट सम एग्जांपल, है ना. ऑब्जेक्टिविटी में 360 परफॉर्मेंस पुलिस का एग्जांपल लिख दिए. इट इज द रिक्रूटमेंट व्हिच डिटरमाइंस द जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज. अब हमने क्या देखा कि रिक्रूटमेंट कैसा हो रहा है. जैसे मान लो सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट, वी प्रेफर जनरलिस्ट, है ना. लेकिन स्पेशलिस्ट, और उसमें जो डिबेट चल रहा है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का डिबेट, तो पहला तो रिक्रूटमेंट स्टेज पे ही तो फिल्टर हो जाता है ना. तो दिस इज हाउ यू हैव टू टॉक अबाउट द वेरियस रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज, है ना. डिबेट अबाउट जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, तो वो आप ब्रिंग, है ना, थोड़ा बहुत एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं. MIS इज ए मैनेजरियल टेक्निक, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इट ब्रिजेस द ट्रेडिशनल गैप इन द वर्क सुपरविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो फाइल पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता था. अब क्या, एवरीथिंग इज पुट ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, है ना. मैंने इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना कितना आसान हो गया विद द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो व्हाट विल हैपन, सुपरविजन करना आसान हो जाएगा, वर्क को सुपरवाइज करना, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, रियल टाइम, तो इट बिकम्स इजियर, है ना. तो वो आप टेक्निक, हाउ इट ब्रिजेस द ट्रेडिशनल गैप इन द वर्क सुपरविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो देयर वाज ए टाइम गैप बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस बीइंग डन. तो कागज पे, फाइल पे, ना, मूव करता रहता था. तो वो गैप को, है ना, ब्रिंग आउट सम रिसेंट इनिशिएटिव, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं. देन MIS part and CPM are have accelerated the process of reinventing O&M, है ना. तो अब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड का क्या काम होता था, है ना, ओम हम लोग इंडिया बोलते हैं. इसका अल्टीमेटली वही है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, व्हाट शुड बी द प्रोसेस दैट शुड बी अडॉप्टेड, हाउ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव, है ना. उसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, CPM पार्ट, ये सब तो क्या है, दीज आर द टेक्निक्स, टूल्स, है ना. क्रिटिकल पाथ कितने समय में काम होगा, प्रोबेबल काम कितने समय में हो जाएगा, है ना. या इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट में कैसे आपस में, है ना, मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग के लिए DSS होता है. तो ये पूरा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव जो था O&M का, उसी को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है ना. तो दैट इज हाउ यू हैव टू रिलेट विद सम एग्जांपल, है ना. रिसेंट डेवलपमेंट का एग्जांपल जैसे प्रगति है ना. प्रगति इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल, दिशा इज दैट. तो ऑल दोज एग्जांपल्स यू नीड टू कोट, है ना. The new practice of promotion based on integrity and ability to perform can be considered much needed reform to reverse the trend of doctrine of committed bureaucracy. अब committed bureaucracy क्या है, उसकी कमियां क्या है, why do we need to reverse this trend, है ना. impartial neutral bureaucracy क्यों जरूरत है. अगेन 2040 का जो अमेंडमेंट, 14 का जो अमेंडमेंट था, उसको भी मेंशन कर सकते हैं. पब्लिक सर्विस एक्ट है, वेरियन कैरेक्टरिस्टिक है, impartiality एंड इंटीग्रिटी क्यों जरूरत है ना. तो प्रमोशन बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू परफॉर्म, तो ये, है ना, तो ये रिवर्स करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, पार्टीशनशिप में बाइसेस, एवरीथिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, दैट इज प्रॉब्लमेटिक. देन अगेन सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी इज, सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी इज बाउंड टू सफर इन कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरल पॉलिटी, है ना. आर्ग्यू एंड सजेस्ट सम मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी. अब सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी क्या है, तो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी से निकल के आया, है ना. मेरिट बेस्ड सिस्टम या इम्पार्शियल न्यूट्रल तरीके से. एक होता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, है ना, एक पॉलिसी न्यूट्रलिटी. तो पॉलिसी न्यूट्रलिटी और एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पार्टी के बढ़ती है. तो आपको यू हैव टू डिस्कस इन दैट, है ना, हाउ फेडरल पॉलिटी, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल का एग्जांपल, वहाँ का DGP का एग्जांपल कोट कर सकते हैं रिसेंट टाइम में, या पुलिस ऑफिसर्स का जो ऑर्डर होता है, या चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का एग्जांपल है, वहाँ पे CM और
जो होम मिनिस्टर के डायरेक्टिव है उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द बिकॉज ऑफ फेडरल पॉलिटी चेंजिंग नेचर, जैसे सीबीआई का जो जनरल कंसेंट है वो खत्म हो रहा है, ईडी ऑफिशियल्स पे अटैक हो रहे हैं, तो हाउ द सिविल सर्विसेज बायसेस और पार्टीशन एलिगेशन अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग द फेडरल कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरल पॉलिटी, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके क्या हो रहा है, न्यूट्रलिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, है ना, तो यू हैव टू ब्रिंग आउट सम कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स है, या फिर जो लॉ में चेंजेस है, एम्बिग्यूटी खत्म करना, ये सब लिखना है। डिजाइन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हैज अफेक्टेड दैट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टेट। अब क्या होगा कि अब ये कई स्टेट्स ने कंप्लेन किया, फॉर एग्जांपल यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, है ना, दीज आर द स्टेट्स हु आर क्रिटिसाइजिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज कि दे आर impacting, they are agent of center, they are not listening to the state government, how they are affecting the democratic accountability towards the state। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको एग्जामिन करना है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, है ना, तो व्हाई देयर इज क्रिटिसिज्म दैट यू हैव टू व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, है ना, तो ये इसमें है ना ARC 2 का रिकमेंडेशन है, या अपना सरकारिया कमीशन या पुंची कमीशन के भी कुछ ओपिनियंस को यहाँ पे कोट करना है ना, ऑल इंडिया सर्विस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, क्यों ऐसा डिजाइन किया गया, व्हाई डू वी नीड स्टिल, है ना, ऑल इंडिया सर्विस, पूरा इंडिया को यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को भी फुलफिल करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको डिस्कस करना है। सिविल सर्विसेज आर मेंट फॉर सिटीजन ग्रीवेंसेस, बट देयर ऑन, देयर ऑन grievances lack effective redressal। अब मान लो यू बिकम IAS ऑफिसर एंड यू आल्सो हैव, यू आर एड्रेसिंग द ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन, लेकिन मन खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि खुद का एक ग्रीवेंस है, ट्रांसफर पोस्टिंग या सर्विस कंडीशन को लेकर वो कोई रिजॉर्स नहीं कर रहा है ना, एपलेट ट्रिब्यूनल है, कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहां मैटर फंसा हुआ है, वहां आपके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन अनटिल अनलेस द ऑफिसर आर हैप्पी, व्हाट विल हैपन, इट विल इम्पैक्ट द वर्किंग ऑफ ऑफिसर्स। तो वही एक सिविल सर्विसेज के पास जैसे वर्कर और कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो हम लोग क्या देखें, JCM मैकेनिज्म, ज्वाइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म, है ना, जो स्टाफ्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उसी तरह सेट और कैट है ना, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। तो व्हाट इज द करेंट स्टेटस, यू हैव टू राइट सम डाटा की करेंट स्टेटस, बैकलॉग, पेंडिंग कितना क्या हो रहा है, वो सब आपको आना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। अगला है द ट्रेनिंग इन इंडिया हैज अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द रिसेंट ईयर। तो वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड कि किस प्रकार ट्रेनिंग हैज टू बी इन कीपिंग इन पेस विद द चेंजेस इन सोसाइटी और द डिमांड ऑफ गवर्नेंस, नेचर ऑफ गवर्नेंस। अगर मिसमैच हो गया, अगर मान लो मिशन कर्मयोगी नहीं आता तो क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा, इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो लोगों का डिसकंटेनमेंट बढ़ता जाएगा। तो दैट यू हैव टू डिस्कस व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द करेंट चेंजेस, व्हाट आर द लिमिटेशन एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। Downsizing approach of liberalization has serious consequences on the recruitment and staffing of the civil services। अब देखो स्टेट का डाउनसाइजिंग, विड्रॉल ऑफ द स्टेट, रोल बैक ऑफ द स्टेट, जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था कि रिक्रूटमेंट अब क्या है, पब्लिक सेक्टर में अपॉइंटमेंट कम हो रहा है, सरकारी जॉब कम हो रहा है, स्टाफिंग सिविल सर्विसेज को इम्पैक्ट किया सीरियसली नोट पे। इट क्रिएटेड a shortage of IAS officer to extent it can't be addressed only through the lateral entry, है ना, तो यानी कि इतना ज्यादा अभी भी जैसे वैकेंसीज का भी आपको डाटा देना है कि देयर आर सो मच वैकेंसी, पार्लियामेंट्री कमेटी का या पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आंसर में बताया गया इतने ऑफिसर्स की कमी है, तो हाउ कैन लेटरल एंट्री बी सॉल्यूशन टू दैट, टू व्हाट एक्सटेंट लेटरल एंट्री कैन फुलफिल दोज कंडीशन, वही जस्टिफाई वही है ना, टू सम एक्सटेंट इट कैन फुलफिल द टैलेंट रिक्वायरमेंट, लेकिन इट कैन नॉट फुलफिल द कंप्लीट गैप, वो जो गैप है। रोल बैक के चक्कर में क्या किया है, विड्रॉल ऑफ द स्टेट के चक्कर में क्या किया, अपना सरकारी गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट कम कर दिए, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फोकस टू मच फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और प्राइवेटाइजिंग इज देयर। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डिस्कस। क्रिएशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन विल इवॉल्व ए हार्मोनियस डी सिलोड अप्रोच। अभी क्या सिलोज में काम हो रहा था, जितने भी सिविल सर्वेंट है ना, बहुत ही डिपार्टमेंटल नैरो अप्रोच होता था ट्रेनिंग में, हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेट, है ना, तो अब क्या है कि मिशन कर्मयोगी, कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन, क्या होगा, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, तो जितना भी अपडेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स है ट्रेनिंग का उसको अडॉप्ट किया जाएगा, है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिया जाएगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग, उस पर फोकस ज्यादा है ना, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूडनल चेंज दोनों पे फोकस है। रिनोमरेशन पेड टू सिविल servant and incentives intensive structure when compared to private sector seem to be inadequate for improving the performance culture। अब इसको एग्जामिन करना है, इसमें दोनों चीज हाईलाइट करना है, करंट स्टेटस क्या है, व्हाट इज द सैलरी दैट इज गिवन टू ए सिविल सर्वेंट एंड व्हाट इज द सैलरी और द रिनोमरेशन व्हिच आर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, है ना, इक्विटी थ्योरी आना चाहिए, मोटिवेशन थ्योरी में हम लोग देखे ना, इक्विटी थ्योरी,
तो वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, मोटिवेशन थ्योरी का कुछ एस्पेक्ट आना चाहिए। तो व्हाट है ना, परफॉर्मेंस कल्चर को इंप्रूव करने के लिए रेन्यूमरेशन किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो आपको देखना है। देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस विच, है ना, तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है ना, कंपेयर करना है पब्लिक और प्राइवेट को, उसी में एग्जामिन कर परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैव बिकम मोर आईसीटी एंड मार्केट ड्रिवन, है ना, देन फोकसिंग ऑन ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट, that, so that they can contribute to the level of their potential। अब क्या होता है कि जैसे आजकल क्या है, आईसीटी जो हम लोग री गवर्नमेंटलाइजेशन पढ़े थे या रीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एवरीथिंग इज यू नो मार्केट ड्रिवन है। कॉन्ट्रैक्ट आउट करो मार्केट में, एनपीएम का जितना भी रिफॉर्म होने पड़ा, रोल बैक ऑफ द स्टेट, एवरीथिंग नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर फोकस ऑन द सिविल सर्वेंट, जैसे सिविल सर्विस एक्टिविज्म है ना, तो नाउ देयर एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी, मार्केट ड्रिवन है। तो वो कैसे जो भी रिफॉर्म मेजर्स लिया जा रहा है, जैसे मान लो प्रगति है, तो क्या आईसीटी का यूज ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट आउट, पीपीपी मॉडल, ये सब क्या मार्केट ड्रिवन ज्यादा फोकस। हम लोग ऑटोनॉमी, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन है ना, तो उसका ऑटोनॉमी पे फोकस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस पे होना चाहिए, इंपावरमेंट, सिविल सर्वेंट को इंपावर करेंगे तभी तो उस अपना पोटेंशियल को रियलाइज कर देगा। तो साइट सम एग्जांपल, यू डोंट हैव टू कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट, बोथ एग्री एंड डिसएग्री, and then suggest what should be the way forward or what should be the right approach, वही आपको डिस्कस करना है। ई समीक्षा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म टू एनहांस द ई एफिशिएंसी इन प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ई समीक्षा आजकल कितना इतना टाइम बचता है, ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज खत्म हो गया, तो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करना पॉसिबल है ना, ऑडिट भी करना, या फिर जो ऑनगोइंग प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना भी आसान हुआ, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। कमेंट करना है, तो इसमें कुछ है ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लिमिटेशंस भी हाईलाइट करने हैं हर जगह, है ना, कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग हर जगह पॉसिबल नहीं है, कंप्लायंसेस कई बार फॉर्मलिज्म भी लाता है, तो वो लिमिटेशंस, एटीट्यूडनल बिहेवियरल प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे, जो कई बार लोगों का जो ग्रीवेंस है उसको है ना हर समय, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है ना, सोशल जस्टिस का मूवमेंट है, तो सोशल जस्टिस वाला काम या तो दे आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, तो डायरेक्टली हम ऑनलाइन है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है, वेयर दे कैन, ई समीक्षा बहुत अच्छे से काम कर सकता है, बट वेयर सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व, वेयर वेलफेयरिज्म या है ना वेरी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल आर इंगेज, तो वहां पे क्या इट मे नॉट बी कंप्लीटली इफेक्टिव, तो थोड़ा सा लिमिटेशन आप हाईलाइट कर सकते हैं एंड वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं। और ये समीक्षा क्या है, फील्ड लेवल पे कैसा होगा, हेड क्वार्टर पे क्या होगा, तो ट्राई टू ब्रेक डाउन द आंसर इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट को टच करके आप निकाल सकते हैं। रोल ऑफ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल इज टू इन्फोर्स डिसिप्लिन इन द सिविल सर्विस इन चार्ज ऑफ दिस, है ना, इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। अब डू यू थिंक दैट द कंडक्ट रूल्स हैव फेल्ड, है ना, to enforce discipline, and they seem to emphasize more on the procedural conduct than ethical conduct। तो वही है, जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है प्रोसीजर पे ज्यादा, मींस ओरिएंटेड गोल, जो रॉबर्ट मर्टन का गोल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, रूल और इम्प्लीमेंटेशन पे है ना ज्यादा फोकस है, इंस्टीड ऑफ इफेक्टिव आउटकम, या एथिकल कंडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं है ना, डिसिप्लिन फेल किया, तो यू हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, डू यू थिंक कंडक्ट रूल हैव फेल्ड, to what extent conduct rule have been successful in enforcing the discipline, तो those are the aspect that you need to discuss, ठीक है। then examine the recommendation of second ERC on the relevance of stable tenure for civil servant, ठीक, तो रिकमेंडेशन डिस्कस करें, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, स्टेबल टेन्योर क्यों जरूरत है। अब मान लो एरिया में यू एज ए डी है ना, यू आर अपॉइंटेड एज ए डीएम, you will come to know about the area, what are the challenges, what are the pollution, you will come up with the short term, long term, mid term targets, and you will have certain vision, you will consult different individual। अब इतना एक्सरसाइज करने के बाद पता चला 1 महीने बाद तो आपको ट्रांसफर कर दिया गया, तो सारा मेहनत बेकार हो गया। टू मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज बिकॉज ऑफ a qualitative opportunity to bureaucrats to perform, that is also impacting the working of bureaucrats, that should be brought out। write the average year, मान लो यूपी मान लो 6 महीने एवरेज है पोस्टिंग, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो ब्रिंग आउट दोज एग्जांपल्स सर केसेस। शायद सेकंड ईआरसी का रिकमेंडेशन 2 है इसका, है ना। हाँ हाँ हाँ, ARC 2 का जो सेकंड का उसका रिकमेंडेशन क्यों जरूरत है, यू कैन आल्सो थिंक, है ना, सपोज यू आर जस्ट इमेजिन यस योरसेल्फ सर, ना, यू आर गोइंग एज ए डीएम एंड यस पूरा सर, मेहनत। क्योंकि इतने 2-3 महीने तो समझने में ही लग जाता है डिस्ट्रिक्ट को, जुरिस्डिक्शन वगैरह सब, यस यस यस, दैट्स फिर व्हाई इतने में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए तो बोलते ऐसा पर्सनल समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, तो इट शुड बी ऑन योर टिप्स, इतना मजा आना चाहिए पढ़ने में, जस्ट रिलेट टू द एम्बिशंस दैट ऑल ऑफ यू हैव, है ना। देन सिविल सर्विस मेमोयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो जितने भी सिविल सर्वेंट सीनियर्स हैं, है ना, उनका वर्क एक्सपीरियंस, जो रिटायर हो गए उनका जो एक्सपीरियंस,
तो दे आर वैल्यूबल एसेट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, ये सब बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, तो वो हम लोग को मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, बस वो तो ऑब्वियसली है ना, वेरी ऑब्वियस। अब उसमें क्या है कि रिकॉर्ड कीपिंग है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, नॉलेज ट्रांसफर है, तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स शुड बी हाईलाइटेड। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। कंटेंट अपने आप आएगा वंस यू थिंक इन ए टर्म्स ऑफ सिलेबस, है ना, वंस यू ब्रेक डाउन द टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ various subtopics. That's why I'm telling you, prepare the skeleton of topics. Whatever topics you are reading, prepare a skeleton, have the short notes, keywords, and then think in those lines. Automatically, whenever you are thinking of organization, discuss, various aspect of organization or administration. Then talk about the environment that is the changing. What are the contextual change? इकोलॉजी जो रिक्स का मेथड है, रिक्स का आइडिया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो मोटिवेशनल थ्योरी है ना, तो ऑल दोज एस्पेक्ट हैज टू बी लिंक्ड विद द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस। ओके, तो अब एक बार हम लोग स्कैन करेंगे, विल टेक ए 2 मिनट्स ब्रेक। ओके, देन विल डिस्कस इन, थोड़ा बहुत एक बार स्कैन कर लेते हैं, आइडिया विल बी सेम। तो अब उसमें कुछ एग्जांपल है, ये सब मेंशन किया हुआ है। तो इवन इफ यू आर रिफरिंग टू द मॉडल आंसर ना, just try to brainstorm the question, write some keywords, and then try to look at the examples which are different from what you thought, and then incorporate them in your short notes। ठीक है, उस तरीके से इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, विल टेक 2 मिनट्स ब्रेक, देन विल resume। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir.
तो अब बेसिकली क्या है ना, उसको जो हमने डिस्कस किया ना, तो यू शुड ब्रेन स्टॉर्म द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू ब्रिंग आउट द रेलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कीवर्ड्स है ना, कुछ ऐड ऑन कर लेंगे, जस्ट विल स्कैन थ्रू द आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब वही है कि दोनों पार्ट को डील करना है, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को डील करना विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इसमें क्या दिया, इनोवेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट है ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन, एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखा गया है। तो यू कैन आल्सो बिगिन विद डिजिटल नो गवर्नेंस, और है ना डिजिटल एरा गवर्नेंस का जो एक किसी पे स्टेटमेंट है, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिसरप्टिव चेंजेस इम्पैक्ट क्या रहा। तो अब क्या आईसीटी का क्या इम्पैक्ट है, बेसिकली ब्रीफली है ना, क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्रियल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ट्राई टू है ना, यू कैन लिंक इट विद। अब यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी। एफिशिएंसी क्या होगा, जैसे मान लो कि प्रोसीजर में है ना, प्रोसेस में, टेक्निक्स में, यहाँ पे तो चेंजेस ला रहे हैं ना। अगर प्रोसेस चेंज हो गया, प्रोसीजर टेक्निक्स चेंज हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। जैसे डीबीटी का एग्जांपल है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके कितना हम डिस्टेंस, टाइम, मनी सब कुछ बचा रहे हैं। तो वो दिस इज वन एग्जांपल। फिर ट्रांसपेरेंसी है, ऑटोमाइजेशन, हर इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है कि एक्सेसिबल पे बाय द पीपल, पीपल आर है ना, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, हर जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब एग्जामिन पार्ट, इसमें देखो क्या, एक एक एग्जांपल उठाया है ना, बेसिक आइडिया लिख दिया और एक एग्जांपल कर दिए, है ना। ट्रांसपेरेंसी है, बेसिक एग्जांपल लिख के फिर एक एग्जांपल कोट कर दिए। एग्जामिन पार्ट है, अब यानी कि कहीं ना कहीं उसके क्रिटिस है, इसको मतलब डजंट वर्क एज पनिशिया ऑफ, जैसे हम बोले थे ना, टू व्हाट एक्सटेंट आईसीटी हैज ब्रॉट है ना एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो डू यू थिंक आईसीटी इज a panacea for all the problems, or are there other challenges, other problems, digital divide वाला concept, सिक्योरिटी चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी है ना, वन ऑफ यू हैव बीन टॉकिंग, और डाटा थेफ्ट है, ये सब क्या है, नए चैलेंजेस है। तो आईसीटी brings efficiency and transparency, but it also come up with the new challenges, but it cannot be solved, you know, panacea of all the problems। ठीक है, that is the examine part। yeah, anything? सर इसमें तो सिर्फ एक ही एग्जांपल हाँ, तो कोई लेके। बात नहीं, दिस इज जस्ट मॉडल है ना, हिंट। तो यू कैन राइट एनी एग्जांपल, डीबीटी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, प्रगति का इनिशिएटिव्स लिख दो, है ना। तो वो सब भी तो कहीं ना कहीं आजकल क्या है, जो डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट है ना, एफिशिएंसी बढ़ रहा है, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी भी आ रहा है, ग्रीवेंस रिड्यूसल में आजकल क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो राइट एनी एग्जांपल, नॉट नेसेसरी। तो एक एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो सी इवन इफ यू आर राइटिंग वन एंड यू आर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आंसर, एग्जामिन पार्ट भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन हाउ यू सर हैव टू इसमें लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स कैसे कवर्ड हैं, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के ऊपर? देखो, अब जैसे मान लो एफिशिएंसी है, तो उसमें हमने दिशा, प्रगति, ये सब का एग्जांपल दिया, डिस्कस किए जब अपन है ना ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। तो डिजिटल टेररिज्म का बात किए, डिजिटल गवर्नेंस का बात किए, तो वो दैट इज इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। O&M का है, स्ट्रेटजी है ना, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, MIS सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, है ना। तो उस सारे एग्जांपल एफिशिएंसी में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, जैसे मान लो हम आप रिपोर्ट, RTI जो FIR फाइलिंग भी ऑनलाइन हो गया है ना। तो दैट इज इम्पैक्टिंग द ट्रांसपेरेंसी। सेक्शन 4 का अब डायरेक्ट वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन है, माई गॉव हो गया, तो एवरीथिंग इज बीइंग पब्लिसाइज्ड ऑन द सोशल मीडिया, आल्सो फेसबुक, ट्विटर। तो वो सारा एस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, दो ही पार्ट, आईसीटी इन एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर उसके लिमिटेशंस को लिख दिए और कंक्लूड कर दिए। ओके, ओके सर। अगला क्वेश्चन है प्लस पोजीशन क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ट्रायंगुलर रिलेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन फाउंडेशन होता है किसी भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहले आपको डिफाइन करना वेदर यू वांट टू गो फॉर रैंक क्लासिफिकेशन और पोजीशन क्लासिफिकेशन। अब लिंकेज क्या होता है, तीनों कैसे लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, तीनों के बीच में उसको लिखना है, एंड देन ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पे फोकस होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन बिगनिंग हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन पोजीशन होता है, रैंक होता है, दोनों का एडवांटेज भी है ना। तो कुछ बेसिक्स हमने लिख दिया करंट और रैंक क्लासिफिकेशन पे, कि भाई जो इनकम्बेंट पर्सन है, आईएएस बन गया तो इनकम्बेंट पर्सन पे डिपेंडेंट। यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई भी पोजीशन, उसका क्या 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 क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, फंक्शंस क्या है। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन का बेसिक कंटेंट आना चाहिए कि क्या, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड, यू हैव टू पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ड्यूटीज क्लासिफिकेशन या पोजीशन क्लासिफिकेशन, यो दे आर यूज सिनोनिमसली। ठीक, तो इसको एडवांटेज हम लोग पोजीशन का देखा, स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल वर्क। अब मान लो कोई है ना, somebody is working in a particular district which has less challenge over someone who working in a very difficult hilly terrain or difficult area, तो both are, you know, both are working, they will be paid equally। So it again, it discourages some kind of initiatives, that means lot of hardship, you know, people are facing in terms of dealing with the difficult districts।
तो बट दे विल बी गिवन सेम प्रिविलेजेस, सेम प्रमोशन, पोस्टिंग और ये सब, तो वो प्रॉब्लम। यानी पोजीशन क्लासिफिकेशन इज जनरली प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन के लिए, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला है। फिर जाके इसमें आपको एवरीथिंग, जॉब ड्यूटी एवरीथिंग इज डिसाइड, साइंटिफिक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड, वी आर मूविंग टुवर्ड स्पेशलाइजेशन। तो it facilitate lateral entry. Why? Because every position is defined. What are the roles, responsibility? What are the qualifications which are required? If things are very organized or clearly defined, no, then it is very easy to bring out the lateral entrance. है ना, उसको पता है कि कहाँ से लाके क्या क्या काम है, क्या ड्यूटीज है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है ना। इससे डिस्क्रिमिनेशन ये सब भी खत्म होता है। ठीक। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन ट्रायंगुलर, अब तीनों को देखना है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, वर्किंग कंडीशन और क्वालिफिकेशन, तीनों को लिंक कैसे करना है। कोई क्या होता है यहाँ पे, एवरीथिंग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो गया तो एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा। यू कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल। वर्किंग कंडीशन हो गया क्या कि भाई एक पर्टिकुलर वर्क कंडीशन क्या है ना, डिपार्टमेंट में इंटर रिलेशनशिप क्या है, वर्किंग नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन कितना है। और फिर क्वालिफिकेशन मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, डोमेन नॉलेज व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो इट इज काइंड ऑफ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, तीनों को एक है ना ब्रीफली एलोबरेट कर दिए, एंड देन वी सी विद सम एग्जांपल है ना करंट कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें हम कंक्लूड कैसे करें, ऑल्दो पोजीशन क्लासिफिकेशन नॉट फॉलोड इन इंडिया, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डोमेन क्लासिफिकेशन या डोमेन स्पेशलाइजेशन की ओर। एआरसी 1 ने रिकमेंड किया, एआरसी 2 ने रिकमेंड किया, है ना। सुरेंद्रनाथ कमेटी ने। अब मिशन कर्मयोगी क्या है, कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, स्किल्स है, नॉलेज है, तो यू आर इनरिचिंग थ्रू दैट। तो अब क्या होगा, रैंक वाले क्या करते हैं, पोजीशन क्लासिफिकेशन के की फीचर्स को रैंक में ही इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और पोजीशन वाले क्या करते हैं, रैंक वाला जो कॉमरेडरी है, यूनिटी है, कॉमन, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग डिटेल में देखे थे पहले। ठीक है। व्हाइटलिज्म का रेलेवेंस क्या है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि बेसिक्स आपको लिखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो व्हाइटले काउंसिल बना था, कैसे प्लेटफॉर्म बनाता है। फोले का मेयो है ना, मेयो का जो हमने वेंटिलेशन थेरेपी देखा कि वर्कर्स को है ना बातें करो, उससे ग्रीवेंसेस सुनो। अब फोले का इंटीग्रेशन का आइडिया, इंडिया में सक्सेसफुल मॉडल है जीसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म। कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट क्या क्या देख रहे हैं, एलपीजी आ गया, पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आईसीटी का अपन क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हुआ, जॉबलेसनेस है, तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, परफॉर्म और पेरिस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ले ऑफ का, जैसे मतलब प्राइवेट सेक्टर है वहां पे क्या होगा, इलॉन मस्क या इन्फोसिस का देखे एग्जांपल्स देखे कि वहां पे अभी जैसे कोरोना टाइम है तो कितने सारे लोगों को निकाला गया। सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री का बात करते हैं अपन, पेंशन को लेके न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम में डिबेट चल रहा है। ठीक। तो अगेन जेसीएम अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द एस्पेक्ट दैट यू नीड टू टच अपॉन। ठीक है। तो इम्पॉक्ट वही है, मेंटल रिवोल्यूशन टेलर का बात किया, वेंटिलेशन थेरेपी और इंटीग्रेशन, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन मेंशन। इसलिए लिंकेजेस यहाँ पे आता है कि हम थ्योरी से कैसे कनेक्ट करें। और थोड़ा बेसिक्स हमने हिस्ट्री लिख दिया, 1917 में ना व्हाइटले चेयरमैन बना था उसके अंदर, इसलिए व्हाइटले कमीशन। तो वो क्या करता था कि इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रमोट क्या करेगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, या कॉपरेशन डेवलप होगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड पे कमीशन ने भी बोला कि व्हाइटले टाइप ऑफ मशीनरी इंडिया में लिया, तब जाके जेसीएम टाइप का सिस्टम आया। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, नेशनल लेवल पे, डेवलपर डिपार्टमेंट और रीजनल या ऑफिस लेवल पे। तो आपस में क्या होगा, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी आसान हो गया। ऑब्जेक्टिव वही है, वेंटिलेशन थेरेपी की तरह काम करेगा, डिस्कस करेगा, कॉपरेशन को मैक्सिमाइज करना है ना, एक्सपीरियंसेस और व्यू पॉइंट को एक साथ लेके आना है, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और एक ह्यूमन रिलेशन मेंटेन किया जाएगा। इससे ओवरऑल अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड efficiency will improve if you are reducing the conflict or you are addressing the grievances. That is the objective। relevance तो बहुत जरूरी है, overall it is very important now, every organization is very competitive है ना, इतने प्रेशर है, प्रेशर टू परफॉर्म और पेरिस वाला कॉन्सेप्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता जाएगा ना, आजकल कितना ज्यादा वर्कफोर्स और एस्पिरेशनल हो रहा है ना, डिमांडिंग वर्कफोर्स इज वेरी डिमांडिंग। तो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, सोशल सेफ्टी नेट, न्यू जैसे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का डिबेट चल रहा है। तो व्हाइटलिज्म क्या करता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप को बढ़ाता है स्टाफ और गवर्नमेंट के बीच में। तो ओवरऑल क्या होगा, एफिशिएंसी, मोरल, ये सब इंप्रूव होगा। इफ सेटिस्फाइड वर्कर इज दैट दैट इज व्हाट। या प्लीज सर ये एक्चुअली में मैंने पढ़ा नहीं है कभी। ये विटलिज्म वैसे होता क्या है? ये क्या हुआ ना, 1970 में यूके के अंदर, वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, इंडस्ट्री में और वर्कर्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो देन व्हाइटले कमिटी वाज सेट अप in 1970 to study what could be the way forward, what kind of solutions could be provided, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, एक जॉइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल बनाया गया।
उसमें क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसके होंगे, एम्प्लॉयर के भी होंगे और एम्प्लॉयज के होंगे। तो कोई भी अगर एम्प्लॉय का कोई भी ग्रीवेंस है वहां पे आके वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। तो यही इसी इसलिए इसको हम लोग व्हाइट लेक काउंसिल का नाम ही दे दिया। तो बस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आधा मान लो एम्प्लॉयज है और आधा एम्प्लॉयर है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, नेगोशिएशन, फोले का जो आइडिया, इंटीग्रेशन वाला आइडिया है ना, या मायो का वेंटिलेशन थेरेपी है, यहाँ पे डील हो रहा है ना। आर यू एबल टू गेट इट? ओके सर। हाँ, अब जेसीएम क्या है, मतलब उसी आधार पे ग्रीवांसेस वगैरह जो भी वर्कर्स के ग्रीवांसेस। स्टाफ। हाँ ठीक है सर। और सेकंड पे कमीशन ने रिकमेंड किया व्हाइट ले टाइप ऑफ यहाँ पे ले आओ, तो हम लोग क्या ज्वाइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म ले आए। तो 3 लेवल पे लेकर रख दिए, डिपार्टमेंटल, रीजनल और लोकल लेवल पे सेटअप किया गया, है ना। बाय पार्टी बॉडी होता है, रिप्रेजेंटेटिव दोनों का होगा, ऑफिशियल साइड भी होगा, है ना, और एम्प्लॉय साइड भी होगा। ठीक। तो वो क्या करेगा, और वो मतलब उससे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे उसमें यूनियन का रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो क्या होगा, आपस में डिस्कशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस है नहीं है, यू कैन आल्सो इमेजिन ऑब्वियसली, क्योंकि वर्कर्स कितने एस्पिरेशनल हो गए, डिमांडिंग हो गए, है ना, पेंशन को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, प्रमोशनल एवेन्यूज को लेके, इक्विटी थ्योरी का वाला जो एप्लीकेशन है। तो कई सारे पोस्ट एनपीएम एनपीएम डेवलपमेंट्स है, उसमें हम लोग क्या देखें नाउ, यू नो, until unless people's staff's problem is solved, है ना, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है अगर हार्मोनियस रिलेशन हो जाए। ठीक। तो एक बढ़िया मीटिंग ग्राउंड है, कॉमन म्यूचुअली एग्रीबल फैशन में दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशंस। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो क्या होगा, वर्कर रिटेंशन इज ए चैलेंज, पीपल आर ज्वाइनिंग एंड लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके ग्रीवेंस नहीं एड्रेस होगा, रिन्यूमरेशन नहीं दिया जाएगा, या रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होगा, तो क्या होगा, मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक साथ यू आर वर्किंग इन मल्टीपल कंपनीज, मून लाइटिंग वही होता है। ठीक है, मास रेजिग्नेशन अभी कई सारे कंपनी में देखे, मास रेजिग्नेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसको अगर मान लो बेटर रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है, ग्रीवेंस एड्रेसल होगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली इट इज नीडेड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एक म्यूचुअल एग्रीबल सॉल्यूशन आएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तो अलग अलग ना, और इसमें जैसे मान लो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया, है ना, तो बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। तो मैकेनिज्म होता है कि ग्रीवेंस को कैसे एड्रेस करे और लोगों को कैसे मोटिवेट करे, इक्विटी थ्योरी, जस्टिस थ्योरी अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज नेवर एज इम्पोर्टेंट एज टाइम फॉर द, है ना, करंट टाइम में कितना एक्सक्यूज मी इंपॉर्टेंट सर। हो गया। या सर ये प्लीज। ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी लिखा था हम्म। वहाँ पे, तो तो ये कैसे लिंक्ड है? हाँ नहीं, जेसीएम में ज्वाइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म, जो हम लोग सेंट्रल लेवल पे ना, सरकार ऑफिशियल साइड नॉमिनेट करता है, कौन, गवर्नमेंट। और उसमें क्या कि मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होता है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इम्प्लाइज है, आईएएस ऑफिसर का ग्रीवेंस, है ना, तो उसको तो टॉप लेवल अधिकारी ही डील करेगा ना। हाईएस्ट स्टेट में मान लो चीफ सेक्रेटरी होता है, और सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ही इज द हेड ऑफ काइंड ऑफ, है ना, ऑल द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट। तो वही तो एड्रेस करेगा ना जो भी ग्रीवेंस आता है, तो वही है, ओके। जितने भी स्टाफ ओके से सर। एम्प्लॉयज। या अदर्स कैन आल्सो, एनी डाउट प्लीज आस्क, है ना। हम तो स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक बार जस्ट स्कैन कर लिए। तो नाउ यू कैन आल्सो रेज योर डाउट्स, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, प्लीज डू दैट। ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज का इंपॉर्टेंट है क्यों, अब देखो इसमें ना सर ने जैसे बताया कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, एक तो हम लोग क्लासिकल अप्रोच देखे, कॉग इन द व्हील टाइप का। अब जैसे जैसे इसको आप थ्योरी से भी लिंक कर सकते हो, क्लासिकल थ्योरी टू ह्यूमन रिलेशन टू बिहेवियरल टू पीएमटी थिंकर्स, है ना। तो कैसे वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में पहले लोगों को क्या अंडरमाइन किया जाता था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल वर ट्रीटेड लाइक ए कॉग इन द व्हील, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया मशीन का प्रिंसिपल्स के प्रति, जो है ना स्टार्टिंग वाला फेज। फिर देखे देखे अरे पीपुल हैव द इनफाइनाइट पोटेंशियल्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इतना कंपटीशन आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया, सर्विस सेक्टर डोमिनेंस आ गया, दे आर पीपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वहां पे क्या है, पीपुल हैव द इंडिविजुअल वर्किंग इन द पीपल, वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, है ना। ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, या टैलेंट के लिए तो हंट हो रहा है ना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हंटिंग और लुकिंग फॉर सम टैलेंट, दैट्स व्हाई देयर इज टू मच फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स। तो अब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये सब हो गया। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का बात होता है, सोशियो साइकोलॉजिकल कैपिटल, इफ यू हैव द गुड, गुड बॉन्डिंग, सोशल कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट आजकल है। तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, एफिशिएंसी के लिए आजकल पर्सनल मैनेजमेंट में क्या देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। तो पीपल वांट, है ना, दे आर आल्सो एस्पिरेशनल। तो अब एआई है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, एनपीएम मॉडल में हम लोग क्या देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी आ गया। तो मून लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन बना दिया, है ना, मिशन कर्मयोगी लेके आगे। ठीक। तो बस एक जनरल कंटेंट लिख देना ह्यूमन क्लासिकल से करंट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी तक। ठीक। तो उसमें वही होता है, स्किल, एबिलिटी और
क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल आर मोटिवेटेड, स्किल्ड, है ना, दे हैव गुड अपॉर्चुनिटीज, तो व्हाट विल हैपन, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सिस्टमेटिक अप्रोच होता है ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट, ये सब फीचर्स, है ना, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल म्यूचुअल गोल अचीव करे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, स्किल नॉलेज इंप्रूव करना है, अपॉर्चुनिटी देना है, पॉजिटिव वर्क कंडीशंस क्रिएट हो। ओवरऑल क्या होगा, इस सब इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो रहा है। आजकल कितना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इतना डायनामिक आ गया, पोस्ट एनपीएम आ गया, इतने टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हो गए। तो कंपटीशन के दौर में तो लोगों को, टैलेंट को रिटेन करना भी एक चैलेंज। और यहाँ पे मून लाइटिंग और ये सब कॉन्सेप्ट आ रहा है, या फिर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द जॉब। उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग दो, फिर पता चला ऑफिस, है ना, या एम्प्लॉय चला गया, तो सारा, है ना, प्रोसेस को वापस से रिवाइव करना है। तो देयर हैज टू बी एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज टू फॉर द एम्प्लॉयज। तो वही ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी, टेन्योर, ये सब भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग को ये जो फोर्थ ह्यूमन रिसोर्स इज, इट इज, नो, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ट्रेनिंग एम्स एट ब्रॉडनिंग द एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो देखो, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल होता है ना। स्किल सेट, जैसे एप्टीट्यूड क्या होता है, व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स, है ना, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब। एटीट्यूड होता है सॉफ्ट बिहेवियर, मोटिवेशन, बिहेवियर, है ना, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, ऑल दोज एस्पेक्ट जो क्रिस अर्गारिस ने भी डिस्कस किया। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस का किरण अग्रवाल कमेटी ने बात की, इथोज, इक्विटी, है, एफिशिएंसी की बात है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सनल है, कोई भी इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी कंटेंट, यू कैन आल्सो, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोसेस हैविंग क्रिटिकल रेलेवेंस फॉर द कंटेम्पररी। इस ट्रेनिंग को किसी और से रिप्लेस कर दो, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिप्लेस कर दो। तो ट्रेनिंग क्या होता है कि कैपेबिलिटी बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओवरऑल क्या होगा कि जो स्किल्स रिक्वायर है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है। तो नीड फॉर ट्रेनिंग क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली एफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सब को कम करना है ना। तो और इससे ओवरऑल क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा, वर्कफोर्स फ्यूचर चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, मतलब ये हार्ड स्किल्स हो गया और ये सॉफ्ट स्किल्स हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम स्पिरिट, है ना, यहाँ पे राइट मैन एट राइट पर्सन, दीज आर द ऑब्जेक्टिव, राइट स्किल शुड बी देयर। तो ट्रेडिशनल मेथड से कैसे आ रहा है, और ये है, उसको डिस्कस हमने कर लिया। फ्यूल भी बात करता है ना, फ्यूल ट्रेनिंग की बात करता है। टेलर आल्सो फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग मेथड एस्पेक्ट। आजकल तो ह्यूमन रिसोर्स या जो भी गवर्नेंस पैराडाइम है, उसमें क्या लगेगा कि ट्रेनिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो देयर हैज टू बी एटीट्यूडनल चेंज, एप्टीट्यूडनल, क्योंकि आईसीटी डिसरप्ट कर दिया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है, तो स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा। राइट एटीट्यूड नहीं है, तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो किरण अग्रवाल कमेटी का जो होलिस्टिक कॉम्पिटेंस का बात हमने किया, इक्विटी, एफिशिएंसी और वो, तो चारों चीज है ना, यू शुड, दीज आर द कंटेम्पररी डेवलपमेंट दैट यू कैन मेंशन। फिर उसके बाद effectiveness of training depends on training techniques. To what extent effectiveness depends on training technique, that is also where you can look at and analyze whether changes in training techniques have kept pace with the changing in the time. अभी क्या हो रहा है कि इतने पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट आ गया, एनपीएस आ गया, है ना, नेटवर्क गवर्नेंस आ गया, तो पेस ऑफ चेंज क्या हो रहा है, और टेक्निक्स में चेंज, तो गैप आ रहा है ना। इट इज नॉट कीपिंग पेस विद द ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इम्पार्ट नॉलेज है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सेल्फ डेवलपमेंट है ना, ट्रेडिशनल, और ये हो गया एडवांटेज ट्रेनिंग का बता दिए। फिर होता है डिसएडवांटेज ट्रेनिंग, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग टेक्निक, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक्स में फ्लेक्सिबल होता है, एटीट्यूड पे ज्यादा, बिहेवियर पे ज्यादा फोकस है। डिसएडवांटेज भी होगा, है ना, कॉस्टली होता है, बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, लॉट ऑफ एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड। तो वो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अब इसलिए क्या होता है कि मॉडर्न टेक्निक में अडॉप्ट करना, इट्स नॉट ऑलवेज फिजिबल, है ना। तो कॉन्टेम्पररी चेंजेस क्या है, जैसे मान लो पीपीपी में हो गया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, एआई आ गया, करिकुलम, एवरीथिंग हैज टू बी चेंज। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिशन कर्म की इनिशिएटिव है, ट्रेनिंग इनके कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन है। तो दो एग्जांपल यू नीड टू ब्रिंग। इट इज नॉट दैट टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट बीइंग चेंज, इट इज आल्सो बीइंग चेंज, बट देयर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ चेंज, वेरी फास्ट चेंजेस। तो डज इट कीप पेस, है ना, ये रनिंग बिहाइंड द टाइम। तो ट्रेनिंग टेक्निक कितना गैप है, उसको आपको ब्रीफली यू हैव टू मेंशन। तो still you need to have the more, है ना, मिशन कर्म होगी, that is also innovative strategy to improve the skills, और तो वो आप लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड विद मिशन कर्म भी। अब इसमें सिंपल है, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। तो सिंपल आपको ना लीगली इन्फोर्सेबल होता है, पनिशमेंट होता है, लेटर साइड और स्पिरिट साइड। तो जस्ट प्रिपेयर 2-3 कीवर्ड्स, है ना। ये लीगल अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, मोरल अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये क्वांटिटिव होगा, क्वालिटेटिव हो गया।
ठीक है, तो वो आपको डिफरेंस लिखना है और उसको इन्फोर्स कैसे, कई सारे लॉज होते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने, मेंशन दैट। ठीक, तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस दोनों होता है अल्टीमेटली ओवरऑल, है ना, अकाउंटेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, ये सबको इंश्योर करना है। दोनों का ऑब्जेक्टिव ARC2 का क्या रिकमेंडेशन है, पब्लिक सर्विस कोड होना चाहिए, है ना। तो वो है कि देयर आर सम ओवरलैपिंग एरियाज आल्सो बट देयर आर सम डिफरेंट एस्पेक्ट आल्सो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ independently creating decision standard based on core social values that can be discovered within the reasonable organizational boundaries, है ना। तो अभी इस स्टेटमेंट को जस्ट ओपन अप कर देना है ना। तो एथिक्स का इम्पोर्टेंस हम लोग पता ही है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे ओवरऑल बेनिफिट क्या आ रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज दैट इज नीडेड वेर इन ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने देखा, या एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पब्लिक सर्विस एक्ट के अंदर जो क्वालिटी फाउंडेशनल वैल्यूज हम लोग एथिक्स में जो पढ़ते हैं मेंशन दैट, है ना। देन एथिक्स का असेसमेंट क्या करता है, बिहेवियर को असेस करता है, सोशल एथोस है नहीं है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन द सोसाइटी, प्रोफेशनल एथिक्स चाहिए, है ना। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के देखो एक लीगल स्क्रूटनी होता है और एक एथिकल स्क्रूटनी होता है, कोई भी डिसीजन है तो पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स का बैलेंस होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना है ना, इम्पार्शलिटी एनोनिमिटी ये सब मेंटेन करना है, सोशल जस्टिस है, कंपैशन है। तो दोज आर द वैल्यूज दैट वी रीड इन द एथिक्स आल्सो। ठीक, पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो राजस्थान का एक एग्जाम्पल, IAS ऑफिसर है, मान लो कोरोना टाइम में क्या किया, ही वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ द ड्यूटी, है ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प किया, या कई सारे एग्जाम्पल है ना, हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट है ऑपरेशन सुलेमानी का, है ना। तो वो आप लिख सकते हैं, देयर आर मल्टीपल, या नॉर्थ ईस्ट में जो रोड कंस्ट्रक्ट किया दैट इज आल्सो गोइंग बियॉन्ड दैट, और नॉलेज कमिटी से कंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक, ERC2 ने पब्लिक सर्विस कोड की बात किया, यू कैन मेंशन दैट। Weberian model of recruitment and career development in the field of is under serious challenge. Why it is, है ना, क्या है बेसिस, क्या रिक्रूटमेंट का, है ना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी, ये सब भी था। करियर एडवांसमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, टॉप डाउन हायरार्किकल अप्रोच, एंड देन रिसेंट चेंजेस क्या है करियर एडवांसमेंट में, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, कोई पोस्ट को पहले डिफाइन करोगे, क्या क्या क्वालिटीज या जॉब रिक्वायरमेंट, और उस तरह से ये नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है ना, मास रिक्रूटमेंट हो गया या इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा खराब का क्या होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्पार्शियल और नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या होता है, जैसे मान ली अलग अलग कंट्री में क्या प्रैक्टिस है, 1980s के बाद हम लोग क्या देखे, पैराडाइम शिफ्ट हुआ गवर्नेंस में। तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी, जॉब कंटिन्यूटी और करियर प्रोग्रेस, है ना। तो इंस्टीड ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है आजकल हम लोग देख रहे हैं, लेटरल एंट्री टाइप का आ रहा है ना, करियर। तो कंपटीशन कैसे क्रिएट हो, जैसे मान लो UK के अंदर थैचरिज्म है, US के अंदर रिगनिज्म था, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय या लेटरल एंट्री का प्रमोट करना वहां पे इंसेंटिवाइज किया गया। परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा फोकस है, कॉन्ट्रैक्ट नाउ रिसोर्स, है ना। पुलिस का इनिशिएटिव जैसे मान लो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव 2011 का, परफॉर्म और पेरिस वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में अडॉप्ट किया। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द रिसेंट इनिशिएटिव, है ना, हाउ टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म, क्या पॉजिटिव निगेटिव उसको ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन लॉयलिटी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय आ गया, तो डिफेंस सेक्रेटरी तो बना नहीं सकता ना, या कैबिनेट सेक्रेटरी बना नहीं सकते। लॉयलिटी और उसका जो कमिटमेंट है, तो कई सारे फैक्टर होते हैं दैट यू नीड टू कंसीडर। वर्क स्टडी सिंपल टेक्निक है प्रोडक्टिविटी बनाना है, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, ये सब अपन देखते हैं, वर्क को मेजर करना, प्रोडक्टिविटी को ऐसे पे, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द वर्क, ये सब जरूरी है, टूल्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा और रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़िया हो जाएगा। तो PERT CPM का नेटवर्क एनालिसिस, ONM मेथड, तो दोज आर द पार्ट ऑफ दैट यू हैव टू मेंशन। Disruptive nature of development in IT had changed the contour of e-governance in the last decade. So do you think so? Why it is so? है ना, how it is doing so? तो that you have to write, है ना। अब जैसे मान लो UN ने 5 e-governance का 5 फीचर दिया, not required, है ना, you don't have to remember them, just you can mention some of the key features या phases में आप दिखा सकते। हाँ हाँ प्लीज। सर इन शॉर्ट हमें हर एक क्वेश्चन में पहले उसका अबाउट लिखना है, सिग्निफिकेंस लिखना है, इश्यूज इन्वॉल्व लिखना है, वे देन फॉरवर्ड। रेलेवेंस बताना है, हाँ यस, देन वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस वगैरह, करेक्ट। अल्टीमेटली दैट इज कंक्लूजन, अब ये जितने भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल या पेपर 2, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एग्जांपल्स उसी में इंक्लूड करके बिल्कुल वो अब रेलेवेंस। वही, हाँ जितना ज्यादा वो सब डालेंगे तो दैट विल बी वैल्यू एडिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर ई जैसे गवर्नेंस कई का, बार एग्जांपल्स है ना हिट नहीं करते हैं, तो फिर सिंपल एक एग्जांपल भी कोड कर दें तो दैट इज इनफ।
तो दैट्स व्हाई नो व्हेनेवर यू आर रीडिंग फॉर पीटी ना, पीटी में क्या होता है, कई सारे स्कीम्स एंड पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्राई टू फिल्टर है ना उसको इमीडिएटली, जहां पे लग रहा है कि ये स्कीम पॉलिसी पवेड के सिलेबस में जा सकता है ना, जस्ट मेंशन दैट, कि मेंशन द ओनली स्कीम्स या कीवर्ड्स मेंशन कर दो। वंस यू आर रिवाइजिंग द पवेड ना, देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट करंट डेवलपमेंट, है ना, तो ऑटोमेटिकली कई सारी चीज ना इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और इट विल आल्सो अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ पेपर, कि अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन यूज करना तभी पॉसिबल है वंस यू link the current affairs with the PubEd syllabus. Until and unless you do this exercise, है ना, it is very difficult to use directly in the exam. अब वो याद ही नहीं आएगा उस समय पे, अगर याद नहीं हुआ तो सब मेहनत बेकार। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप ना करंट इवेंट्स पढ़ते हैं, करंट एग्जांपल्स है, तो ट्राई टू इफ सी द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज इन द PubEd, एंड उसके सिलेबस के अंदर फटाक से उसको डाल देना। तो दैट विल, यू नो, वंस यू डू दिस एक्सरसाइज, और 5-6 महीने में enough, now you are reading current affairs, just keep track of, you know the syllabus, you know the PYQs, and where it can be used, just try to mention that, ठीक है। यस सर। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या डिसरप्टिव नेचर है, कैसे चेंज किया, कंट्रोल को कैसे चेंज किया, तो हम लोग ई गवर्नेंस, पहले ई गवर्नमेंट आया, कंप्यूटराइजेशन फोकस था, फिर जाके ई गवर्नेंस, अभी क्या आजकल काफी फोकस ई गवर्नेंस का। तो अब इसमें इतने सारे नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंस टेक में भी हम लोग सेम चीज पढ़ते हैं, तो चैलेंजेस भी हमको पता है ना, कई सारे चैलेंज जो कॉमन न्यूज़पेपर में हमेशा डेली डिस्कस हो रहा है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिजिटल डिवाइड, अवेयरनेस, स्किल, सब कुछ, ये सब तो कॉमन पॉइंट्स है ना। तो हम लोग डिजिटल गवर्नेंस एक बिल्डअप है, पहले ई गवर्नमेंट मतलब क्या होता था, पहले कंप्यूटराइजेशन करेंगे तभी तो आपस में इंटरेक्शन होगा, गवर्नेंस आएगा, फिर अब जाके हर फील्ड में डिजिटल गवर्नेंस है ना, मोबाइल गवर्नेंस तक पहुंच गए। तो दिस इज, यू नो, फेजेस ऑफ इवोल्यूशन मेंशन कर सकते हैं की फॉर्म। Then we have the performance appraisal can serve as a tool of integrating personal goal with the organizational goal. How it is, you know, motivating the employees to achieve the organizational goal. How it incentivizes people to work for the organization. उसी को डिस्कस करना है। Why do we need to have the objective performance appraisal? Subjectivities क्या होगा कि भाई वहां पे इक्विटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा, ठीक है। एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट से हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल से आ गए, अब आईगोट आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, 720 डिग्री अप्रेजल आ गया। तो दीज आर एडवांसमेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एसेस करते हैं कोई भी एम्प्लॉय है ना, फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस, ऑल ऑफ यू आर द पीएम और सीएम, है ना, अपने जितने भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, पैसा दे रहे हैं तो सैलरी दे रहे हैं, तो यू वांट व्हाट यू वांट। इन द प्राइवेट सेक्टर, इन एवरीवन देयर इज क्लोज स्क्रूटनी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द स्टाफ। अगर डे डूड हो गया तो बाहर कर दिया, परफॉर्म और पेरिस वाला कॉन्सेप्ट अब गवर्नमेंट भी ला रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव है ना परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या, कि आपका जो है करियर एडवांसमेंट, जॉब रिलेटेड इवैल्यूएशन है, असाइनमेंट कितना है, तो दीज आर द पैरामीटर्स, यू नो, यू कैन इमेजिन द वर्क लाइक सिचुएशन एंड देन दे टच अपॉन डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। दो मेथड है, ट्रेडिशनल और वो कॉन्टेम्पररी। ट्रेडिशनल हमने डिस्कस किया है ना, दे आर नॉट बिकमिंग इफेक्टिव। तो मॉडर्न क्या है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, ठीक। तो इसमें जो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी फ्यूजन जो प्रोसेस था एर्गैरिस को, वही जरूरी है ना, कि है ना, इंडिविजुअल क्रिस एर्गैरिस का बात होना चाहिए, फ्यूजन प्रोसेस देखो मेंशन किया हुआ है, मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड, है ना, इक्विटी थ्योरी, ये सब भी आना चाहिए, बिहेवियरल का जो हमने। इंटरलिंकेजेस का स्कोप बहुत ज्यादा है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इफ यू हैव द गुड कमांड ओवर इंटेलिजेंस, यू कैन ऑलवेज मेंशन द थ्योरीज नेम, थिंकर्स नेम, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेट करेगा पैरामीटर। अब जैसे मान लो तुम लोग है ना, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो यू विल सेट सम टारगेट्स, है ना, टू व्हाट एक्सटेंट द टारगेट हैज बीन अचीव्ड, हाउ मच लैकिंग, व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम द गैप। तो दैट्स हाउ यू कम टू नो ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, क्या कमी रह गई, क्या चैलेंजेस रह गए, कैसे उसको ओवरकम करना है। तो यू हैव टू हैव दैट सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हम लोग क्या है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी अभी भी लैकिंग है। इवन 360 डिग्री क्या है, गैंगिंग अप फिनोमिना है, सारे लोग मिलके है ना, कोई मान लो बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार आ गया, पूरे डिपार्टमेंट। सर ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड में एसीआर भी आएगा ना? हाँ, ये एसीआर, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो आता था एनुअल लेवल पे, तो वो जी क्या जी। कि हाईली सिक्रेटिव होता था, पता ही नहीं क्या है। वो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स को प्रमोट करता था, नेपोटिज्म को प्रमोट करता था, फेवरेटिज्म होता था, है ना। तो उससे क्या है, वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। परफॉर्मेंस अप्रेजल आजकल काफी चेंज हुआ है, 360 या 720 आया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आया, इसमें क्या है कि चेंजेस आया, लेकिन स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे गैंगी अप फिनोमेना है ना। ये फिनोमेना क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऑफिसर बहुत बढ़िया है, डिपार्टमेंट के सारे लोग करप्ट है या फिर ऐसा इनएफिशिएंट, दे डोंट वांट टू वर्क। अब एक बीच में 30 मार खाना आ गया, सब मिलके क्या करेगा, उसके इसको हटाओ,
सब मिलकर निगेटिव फीडबैक दे देगा, तो इट इज आल्सो सब्जेक्टिव। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए अपने को ओवरऑल है ना क्वालिटी ऑफ पर्सनल पे डिपेंड करता है कि कैसा बंदा है। इसलिए रिक्रूटमेंट कई फैक्टर हो गए परफॉर्मेंस इसलिए को सर improve। अब सिविल सोसाइटी से भी अप्रेजल सोशल लेते ऑडिट, हैं। जैसे मान लो सोशल ऑडिट, ये सब क्या है, हम बियॉन्ड डिपार्टमेंट्स, बियॉन्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वी आर मूविंग, सो दैट है ना पीपुल्स का भी इफेक्टिवनेस और सब में भी आना चाहिए। तो कई तरीके हैं है ना, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस या मॉनिटर कर सके। ठीक है ना। ठीक है, देन इट इज द रिक्रूटमेंट व्हिच डिटरमाइंस द जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ। अब ये जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट का डिबेट है ना, कॉमन एकेडमिक डिबेट, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये है तो हम लोग क्या है रैंक क्लासिफिकेशन है, जर्नलिस्ट अडॉप्ट किए। स्पेशलिस्ट में क्या होता है, जैसे आईएएस एईएस है, फॉरेस्ट सर्विस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिबेट देख रहे हैं, वही डिटरमाइंस हाउ इट डिटरमाइंस द जर्नलिस्ट। तो रिक्रूटमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट सर वही ये यहाँ बेसिक्स। पे जर्नलिस्ट में आईपीएस लिखा हुआ है, बट इज इट नॉट स्पेशलिस्ट सर्विस देखो मतलब नीचे? हाँ हाँ, फंक्शनल स्पेशलिस्ट इसको बोलते हैं, है ना। सर ने फंक्शनल स्पेशलिस्ट लिखा ना। आईएएस इज कम्प्लीटली जनरलिस्ट, किसी भी यस डिपार्टमेंट सर। में कभी भी काम कर। बाकी जो ऑफिसर्स है ना, दे आर फंक्शनल स्पेशलिस्ट, इसलिए है ना। आईएएस वर्सेस ऑल अदर सर्विसेज। हाँ, ये तो विद इन चलता रहता है। और बाकी तो कुछ होता है प्योर स्पेशलाइजेशन है, जैसे ईएस इंजीनियरिंग सर्विस है ना, फॉरेस्ट, तो वो कम्प्लीटली एकदम मान लो स्पेशलिस्ट है। ये सब में क्या होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो नाउ इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए स्पेशलिस्ट ओनली। ओनली आईएएस इज कंसीडर्ड एज ए जर्नलिस्ट इन जनरल। ओके सर। ठीक। तो ये डिबेट है ना, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट का क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। ठीक है, तो दो दो ब्रॉडर हो गया। व्हाई डू वी नीड जर्नलिस्ट, एडवांटेज ऑफ जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट का क्यों जरूरत है। तो आज इतना ज्यादा, जैसे मान लो हमने रिक्स का थ्योरी पढ़ा, रिक्स का ना प्रिज्मेटिक फ्यूज प्रिज्मेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट देखे, तो वहाँ क्या स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, तो स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है वेयर थिंग्स आर वेरी वेल स्ट्रक्चर डिफाइंड। अब जैसे यूएसए जैसा कंट्री, डेवलप कंट्री है ना, डिफरेक्टेड सोसाइटी है, तो everything is defined, disintegrated, breakdown of the work, division of work. So now it is possible to each and every position is defined, that's why they have the position classification. अब वहाँ स्पेशलिस्ट को लाना आसान है। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया which is very developing country है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होता रहता है, नथिंग इज फिक्स, नथिंग इज सर्टेन। तो यू नीड टू हैव द मोर एंड मोर रोल ऑफ जर्नलिस्ट। क्यों जर्नलिस्ट है ना, एडेप्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है। स्पेशलिस्ट क्या, नैरो थिंकिंग, और ये सब जो डिबेट हम लोग पर्सनल में देखे थे। तो सेम यू हैव टू ब्रिंग आउट। तो बट ऑटोमेटिकली जर्नलिस्ट का कंसर्न क्या है, स्पेशलिस्ट का कंसर्न क्या है, तो वो आपको लिखना है। ठीक है। तो वही जैसे मान लो जर्नलिस्ट का एक जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं रिक्वायर है, बीए कोई किया है, कोई आर्ट्स किया, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एवरीवन इज बीइंग रिक्रूटेड एज आईएएस ऑफिसर। तो दैट इज आल्सो रिक्रूटमेंट आल्सो डिटरमाइन। ठीक है, लेकिन आजकल क्या फोकस हो रहा है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का, डोमेन स्पेशलाइजेशन का, है ना। फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों रिकमेंड किया है। दैट मीन्स यू शुड हैव, जैसे मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही है ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू आर सपोज यू अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी और एवा पोस्ट, you should have some kind of specialization, you should try to do some kind of higher studies। तो ताकि क्या होगा, जो मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जा रहा है, ही हैज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट है, फॉरेन रिलेशन जा रहा है, तो ही शुड हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही शुड हैव सम एक्सपर्टीज, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड। फिर एमआईएस है, टेक्निक है, ब्रिज करता है टेरिटोरियल गैप इन द वर्क सुपरविजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एमआईएस का तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें इंफॉर्मेशन मैनेज करने में, इफेक्टिव सुपरविजन होगा, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो रहा है। कंपोनेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीपल हो गया। टेरिटोरियल प्रॉब्लम क्या होता है सुपरवाइजर का, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, लॉन्गर डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप है ना, सीक्रेसी था। अब ये गैप कैसे कर, अभी कंट्रोल क्या हो रहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा टेक्नोलॉजी आने से, कम्युनिकेशन फास्टर हो गया, इंस्टेंट हो गया, रियल टाइम हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया, और हायरार्की में क्या होगा, फ्लैटर हो गया, तो ग्रुप मेकिंग, टीम वर्क, ये सब आसान हो गया। तो दैट यू हैव टू राइट। ठीक। अब पर्ट सीपीएम है, एमआईएस है, री इन्वेंट कर रहा है ओएनएम को। तो राइट सम एग्जांपल, जैसे मान लो प्रिसीजन में मैनेजमेंट है, इफेक्टिव सुपरविजन है, प्लानिंग एंड स्टिमुलेशन है। तो हम लोग का बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, टोटल क्वालिटी मूवमेंट है, डिजिटल टेलरिज्म है, बट सीपीएम ये सब का कहीं ना कहीं उसमें देख रहे हैं कि आज के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या है, री इन्वेंट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स को। राइट सम एग्जांपल फ्रॉम यूएस, यूके और इंडिया में भी जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया गया। ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मैनेजरियल एड टूल की तरह यूज किया जा रहा है ना, एमआईएस सिस्टम को। अब उसमें क्या होगा, एमआईएस है तो सारा इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पे आ रहा है, डिसीजन मेकिंग आसान हो रहा है। बट सीपीएम हमने देखा
कि क्या होता है जब भी मान लो कोई प्रोजेक्ट है, कितने टाइम में होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, वो सब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ओएनएम का तो यही तो काम है ना, वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, वर्क को स्टडी करना, मेथड को लिस्ट एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो इसलिए राइट पर्सन एट राइट पोजीशन होना चाहिए, स्किल्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द वर्क ऑफ ओएनएम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वही है ना। तो लिंकेजेस क्या है, तीनों में क्या होता है, वर्क प्रोसेस टेक्निक है, वर्क प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है। तो यहाँ पे देखो जितने भी एपर्ट सीपीएम ये सब है, तो क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ये सब को बढ़ा रहा है ना, तो रिवोल्यूशनाइज किया। तो यानी दे आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द फील्ड ऑफ ओएनएम, है ना। री इंजीनियरिंग हो रहा है, बिजनेस क्वालिटी, ये सब जो जितने भी एग्जांपल है, दे आर बेस्ड ऑन दैट। तो न्यू प्रैक्टिस ऑफ प्रमोशन बेस्ड इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू परफॉर्म कैन बी कंसीडर मच नीडेड रिफॉर्म टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, यू आर कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर। तो वो जैसे इंदिरा गांधी के टाइम हम लोग बोलते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आ गया, इंडिया का एग्जाम्पल है ना। तो अब उसमें क्या है कि इम्पैक्ट इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस कैसे इम्पैक्ट आपको रिवर्स करना है ना। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब दैट इज नॉट इन फेवर पार्टीशन ब्यूरोक्रेसी, ये सब के अगेंस्ट में। इंटीग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस में एबिलिटी कैसे आएगा, इंटीग्रिटी के कारण। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी उसको वीकनेस, और अब जो इंटीग्रिटी और एबिलिटी है उसको कुछ क्रिटिसिज्म लिख देंगे, है ना, इन द नेम ऑफ, है ना, इंटीग्रिटी, और यू कैन नॉट। तो पॉलिसी कमिटमेंट होता है ना, ऑल ऑफ यू आल्सो विल बी कमिटेड टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो प्रमोशन क्या है, प्रमोशन एडवांसमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हो गया। टेम्पोररी परमानेंट दोनों तरह का होता है प्रमोशन, ठीक। बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन क्या है, बेस्ट, अगर मान लो परफॉर्मेंस प्रमोशन ही नहीं है तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड। इफ देयर इज गुड प्रमोशनल एवेन्यूज, योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव। इट विल आल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉयज, मोटिवेशन लेवल, लॉयलिटी बढ़ाएगा, रिटेंशन भी बढ़ेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है ना। यू बिकम आईएएस ऑफिसर, यू हैव टू गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 360 अप्रोचल पुलिस है, परफॉर्मेंस को मेजर करने के कई तरीके हैं, दैट वी डिस्कस। यस मिनिस्टर कल्चर नहीं होना चाहिए, है ना। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, यस मिनिस्टर कल्चर को प्रमोट करता है, इंदिरा गांधी के टाइम था, ठीक। तो वहां पे एलिमिनेट करना है। वीकनेस क्या है, जैसे मान लो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है पीएमओ के अंदर, है ना। तो वहां पाइसेस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज है ना, क्या होता है, यस मिनिस्टर कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो एक चैलेंज है, उसको ओवरकम करना है। तो कई सारे ऑफिसर्स जैसे टीएसआर सुब्रमण्यम का, विनोद राय का एग्जांपल है। तो वो क्या किया ना, ब्यूरोक्रेसी में न्यूट्रल रह के भी काम किया, और काफी, है ना, ओवरऑल इम्प्रूव परफॉर्मेंस को भी दे हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, है ना। वेबर का जो हिसाब था, इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी होना चाहिए। सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी इज बाउंड टू सफर इन कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरल पॉलिटी। एग्जांपल, करंट जितने भी डायनेमिक्स है ना, तो जो फेडरल पॉलिटी में कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, तो उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, न्यूट्रलिटी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। आईएएस ऑफिसर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को नहीं मान रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट की बात को नहीं मान रहा है, तो देयर इज आल्सो एक्विजिशन, है ना, लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन राइट, है ना। उसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलिटी को कैसे किया जाए। तो राइट सम है ना, कॉन्फ्लिक्ट, ए पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, दैट वाज द न्यूट्रलिटी वाज हॉलमार्क ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, कार्डिनल प्रिंसिपल होता है। अब न्यूट्रलिटी मैटर्स बिकॉज, क्योंकि ट्रस्ट ऑफ मिनिस्टर चाहिए। अब मान लो पॉलिटिकल पार्टी तो चेंज होता रहेगा, तो बट देयर स्टाफ्स आर परमानेंट इन नेचर, तो उसको सक्सेसिव गवर्नमेंट के साथ कम करना है, तो दे हैव टू मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस आल्सो, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक। कॉन्फ्लिक्टिंग सीनियर ओवररीच ऑफ द गवर्नर का ऑफिस का हो गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गए, या ये ऑल इंडिया सर्विस रूल में भी चेंज कर दिया, फाइनेंस कमीशन सेंटर से अपॉइंट करता है। दिल्ली सर्विस बिल के बारे में हम लोग डिस्कस किए ब्रीफली। तो वो वेस्ट बंगाल का देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो किस प्रकार से बात को, है ना, वहां पे माना नहीं गया। तमिलनाडु में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कई सारे। तो ये एग्जांपल चेंज होता रहेगा, तो दैट कीप टैप ऑन द न्यूज़पेपर डेवलपमेंट। वहां से आपको ऑल इंडिया सर्विस का, तो कुछ है ना, यू कैन मेंशन सम ऑफ द डिमांड बाय द वेरियस स्टेट्स, कि क्यों ऑल इंडिया सर्विस के खिलाफ है, क्या सजेशंस है, क्या होना चाहिए, व्हाट इज द ERC 2 रिकमेंडेशन, और सरकारी या कमीशन का क्या रिकमेंडेशन, दैट यू कैन मेंशन। तो डिजाइन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हैज अफेक्टेड द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट, है ना। तो ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, नॉर्मली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दे कैन बी रूम ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ऑल इंडिया सर्वेंट क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है मानो, तो मैक्सिमम यू कैन ट्रांसफर, यू कैन सस्पेंड, बट यू कैन नॉट रिमूव देम, तो दे आर वल्नरेबल। तो यहाँ पे क्या बायसेस कंप्लेन होता है कि भाई दे आर बायस टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस करना है। डिजाइन क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ, रिक्रूटमेंट, और ये सब क्या है, एक्ट क्या, पॉलिसी क्या है, ठीक। उसको आपको डिस्कस करना है। ट्रांसफर वही है, स्टेट एट बेक्स क्या कर देगा, ट्रांसफर सस्पेंड कर देगा, है ना, प्रमोशन रोक देगा। लेकिन बस उसको हटाना तो सेंटर का काम है, परमिशन करना पड़ेगा, सेंटर से लेना पड़ेगा।
तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक, मेनी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट गिव परमिशन, है ना। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिसाइजेशन आ रहा है। कुछ कमेटी का राजमनार कमेटी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ये सब सेटअप किया था, या आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है। तो दोज आर द व्यू पॉइंट्स फ्रॉम द स्टेट कि हाउ ऑल इंडिया सर्विस इज एक्टिंग इन द ऑन एक्सक्यूज बिहाफ मी ऑफ सर, सेंटर। हाँ प्लीज। सर ये इधर लिखा है मैंडेटेड टू सर्व बोथ कैडर स्टेट यूटी एंड सेंटर ऑन हम्म। डेपुटेशन। डेपुटेशन पे जाना मैंडेटरी होता है क्या? हाँ मतलब हर किसी को सर्व करना होता है, 5 साल 4 साल, है ना। तो बिकॉज बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो नीड सम ऑफ द टैलेंटेड ऑफिसर्स। अब क्या होगा, हर किसी को प्रमोट करना है, तो स्टेट में तो लिमिटेड रेवेन्यूज है ना, एवरीवन कैन नॉट बी प्रमोटेड और एडजस्टेड इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री तो लिमिटेड है ना, एंड दैट इज आल्सो। सर हाँ तो सर ये सिर्फ डायरेक्ट वालों यूपीएससी के थ्रू होता डायरेक्ट। है? हाँ डायरेक्ट इन जनरल, सर डायरेक्ट वाले को स्टेट प्रमोशनल एवेन्यू पीसीएस से जो ज्यादा है। आते हैं बाय प्रमोशन जो आते हैं वो भी बाद में ऑल इंडिया सर्विस बन जाते जा हैं। सकते हैं बिल्कुल। तो फिर उनके पास ऑप्शन होता है कि दे आर आल्सो मैंडेटरी? या गुड ऑफिसर्स है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट, वी नीड सर्टेन सेट ऑफ ऑफिसर्स, प्लीज गिव सेट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द योर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो है ना स्टेट पीसीएस से प्रमोटेड लोग को भेज सकता है, या फिर है ना एक सेट ऑफ है ना कि ये ऑफिसर्स आप ले सकते हो, दे विल गिव ए लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पिकअप कर लेगा। तो इट इज नॉट दैट ओनली ऑल इंडिया सर्वेंट जो भी प्रमोटेड है, दे आर ऑल इंडिया सर्वेंट, दे कैन बी प्रमोटेड सेंट ऑन डेपुटेशन। ठीक है। तो सर मतलब कई बार कई बार लेकिन डेपुटेशन की सर्विसेज खाली रह जाती हैं, देयर हाँ, इज डेटा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, अच्छे ऑफिसर्स नहीं भेजेगा, या फिर है ना स्टेट गवर्नमेंट कहेगा वी स्टिल लैक ऑफिसर सो वी कैन नॉट सेंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है ना ये, इसलिए तो लेटरल एंट्री ये सब क्या कर रहा है, वो जो गैप फिल कर रहा है ना, टैलेंट कई बार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कोऑर्डिनेशन का इशू आ रहा है। तो क्या होता है कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डायनेमिज्म आ गया, इतना कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ गवर्नेंस आ गया, नो स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड। तो देयर इज लैक ऑफ टैलेंट एट द सेंट्रल लेवल, बट वी नीड मोर ऑफिसर एट द सेंट्रल लेवल। मान लो इफ सपोज गवर्नमेंट इज वेरी हार्श, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जैसे मान लो मोदी गवर्नमेंट आया, तो एकदम जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगे तो कई सारे ऑफिसर क्या हुआ, है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर छोड़ के भाग चला गया वापस स्टेट में। तो अगेन दैट्स व्हाई लेटरल एंट्री या जो रूल में भी चेंज किया गया अभी रिसेंट में, तो उसमें भी है ना कि आईएएस ऑफिसर्स को इम्पेनलमेंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी कंट्रोल ये सब तो ऑल इंडिया सर्वेंट्स के यूनियन के हाथ है, यूनियन एंजॉय ग्रेटर कंट्रोल ओवर द ऑल इंडिया सर्वेंट। ठीक है। ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंशन चलता रहता है स्टेट और सेंटर के बीच में, है ना, एक्विजिशन चलता रहेगा। ये फेडरल रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म आएगा तो क्या होगा कि बेटर है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का सिनेरियो में अलग अलग बात होगा। तो ये इसलिए हम लोग देखते हैं पार्टी तो अल्टीमेटली हम लोग को इस ओर जाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर जाना है ना। तो डिजाइन इज नॉट सुटेबल, ऐसा आर्गुमेंट दिया जाता है कि ऑल इंडिया सर्वेंट का, तो उसमें सेंटर का स्टेट का सीए नहीं है ना, ज्यादा रिक्रूट में, उसमें रिक्रूटमेंट में भी नहीं है, यूपीएससी कर रहा है उसका रिमूवल में भी नहीं है। तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, बट वी हैव टू एग्री विद द ARC 2 या जो है ना सरकारी कमीशन को बोलते नहीं, ये ऑल इंडिया सर्वेंट से इन नेशन को बांध के रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिविल सर्विसेज आर मींट फॉर रिड्रेसिंग सिटीजन ग्रीवेंसेस, लेकिन सिविल सर्वेंट का ग्रीवेंस को कौन रिड्रेस करेगा, है ना, बट देयर ऑन ग्रीवेंस लैक इफेक्टिव रिड्रेसल। तो क्या होगा, अल्टीमेटली सिविल सर्वेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड, देयर इज इट एक्ट एज ए डिटरेंस। एग्जामिन करना है रिड्रेसल मैकेनिज्म में, तो आपको क्या एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है ये सारे आपको लिखने हैं, एंड देन तो उसका कुछ डाटा होना चाहिए, जैसे संजीव चतुर्वेदी का एग्जांपल है, अशोक हेमका है ना, तो दे मेंशन दैट सम ऑफ द एग्जांपल्स। इग्नोर करोगे तो व्हाट विल हैपन, एफिशिएंसी कॉग इन द व्हील की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो वेंटिलेशन थेरेपी चाहिए, दे आल्सो नीड टू हैव द सेटिस्फेक्शन। तो तभी जाके हम इम्पार्शियल या ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म इंप्रूव होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, इनोवेशन आएगा, और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड। Training in India has undergone transformative changes. Yes, do you think why it has gone undergone changes? What are the changes you can talk about, since it is talking of है ना evolution, how it has evolved? तो अलग अलग फेज है, फेज 1 से लेकर लवसना न्यू ट्रेनिंग पॉलिसी ये सब हो गया, फिर 80s में क्या था, है ना, फिर तो कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट भी है ना, यू कैन ब्रिंग आउट, क्योंकि सिविल सर्विसेज है, इंडिया स्पेसिफिक है, यू कैन मेंशन सम एग्जांपल्स। ठीक। तो अभी रिसेंट में क्या क्या चेंज हुआ उसके बारे में हम बात करूँ, तो बेसिक्स लिखना है, और जो भी है ना ब्रिटिश के टाइम क्या था, फिर इंडिया आफ्टर इंडिया क्या हुआ, फिर अभी मिशन कर्मयोगी किरण अग्रवाल का होलिस्टिक कॉम्पिटेंस के बाद कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन
है ना। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल इतने सारे इनिशिएटिव लिया गया मिशन कर्मयोगी से लेकर, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, ये सब क्या करता है ना। इट इज सिमिलर वेरियस इनिशिएटिव फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन स्किल्स एंड टेक्निक्स बट बिहेवियरल चेंज जरूरी है। अब वीकनेस भी हाईलाइट करना है, लिमिटेशंस भी हाईलाइट करना है, लाइसेंस परमिट कोटा राज या टॉप डाउन अप्रोच, कॉलोनियल एटीट्यूड, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग मिल रहा है सबको, है ना। तो परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग में गैप भी है, बहुत सारा लिंकेज कनेक्ट नहीं है। तो किरण अग्रवाल का या मिशन कर्मयोगी का बात हम लोग करके कंक्लूड कर सकते हैं। अगला की डाउन साइजिंग अप्रोच, वही है विड्रॉल ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ द स्टेट। एलपीजी के बाद हम लोग देख रहे हैं इसका क्या होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज किस पे आ रहा है, गवर्नमेंट स्टाफ के रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग में। तो इससे क्या होगा, आईएएस ऑफिसर का शॉर्टेज आ गया। तो अब क्या लेटरल एंट्री फुलफिल कर सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन फुलफिल, तो दैट यू नीड टू टॉक, है ना, उसी को डिस्कस करना है ना, बेसिक्स लिखना है, 1990s के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो कुछ डाटा लिखा हो, जैसे टोटल आईएएस मान लो इतने सीट्स है ना। अब स्ट्रॉन्ग स्टेट, श्रिंकिंग बट स्प्रेडिंग स्टेट, दीज आर द कॉर्पोरेट वेलफेयर स्टेट एरा। तो कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चेंज हुआ। तो अब कुछ डाटा है ना, बेसिक्स लिख देना है। और फिर ऑल ऑब्जेक्टिव क्या, ऑल इंडिया सर्वेंट्स का एक स्टेट और सेंटर के बीच में लाइजन करता है, यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश करता है, एफिशिएंसी मेंटेन करता है। तो एलपीजी रिफॉर्म में हम लोग क्या, एनपीएम रिफॉर्म्स जो भी इनिशिएटिव लिया गया, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आउट, डाउन साइजिंग, ये सब पे ज्यादा हुआ, है ना। लेकिन आजकल क्या कॉर्पोरेट वेलफेयर स्टेट एरा है। तो अभी देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या बोलता है, अभी भी 1500 आईएएस ऑफिसर का अराउंड कमी है पूरे देश में, है ना। करेंटली स्ट्रेंथ 5000, यानी स्ट्रेंथ इतना है और गैप भी 1500, याद कर लो, रफली 1400 आईएएस ऑफिसर्स स्टिल वी नीड। तो सैंक्शंस और अवेलेबल स्ट्रेंथ में क्या होगा, मिसमैच, गैप। तो कहीं ना कहीं देयर इज कॉम्प्रोमाइज ऑन द पार्ट ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं है। तो ये प्रॉब्लम स्टेट वाइज रिक्वायरमेंट, कुछ कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो वेयर देर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज, है ना, जहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल कोट कर सकते हैं वेयर मोर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड बट वेरी लेस ऑफिसर्स आर अवेलेबल। ठीक। तो लेटरल एंट्री क्या है, प्राइवेट स्पेशलिस्ट को लाते हैं कितने, गवर्नमेंट लाते हैं कितने, अभी तक टोटल, है ना, मान लो 2019 से लेकर अब तक कितने ऑफिसर्स को किया गया। तो व्हाट इज द नाउ यू कैन मेक एन असेसमेंट कि, है ना, इसमें क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर रहा, एडवांटेज के अलावा क्या क्या देख रहे हैं, है ना। शॉर्टेज को पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑफिसर्स की कमी है 1400, लेकिन आ रहा है 30-40, तो विल इट बी एबल टू फुलफिल, है ना। और लेटरल एंट्रेंस क्या होता है, कोर फंक्शन में नहीं जा सकता है, दे आर नॉन कोर फंक्शन में, है ना, ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि मान लो सिक्योरिटी डिफेंस ये सब में जो परमानेंट स्टाफ है, जिसकी लॉयलिटी देश के, है ना, गवर्नमेंट के प्रति, उसी को हम लोग सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे डाल सकते हैं। नॉट एवरीवेयर लेटरल एंट्रेंस कैन बी अलाउड, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है ना, रिक्रूटमेंट भी पार्टीशन बेस्ड होता है। तो अब हमको वे फॉरवर्ड लिखना है कि स्कोप बढ़ा दो लेटरल एंट्री का, है ना, विद इन द प्रमोशन पोस्टिंग, ये सब डोमेन स्पेशलाइजेशन, ये सब कर दो। पासवान कमेटी क्या रिकमेंड किया, डेप्यूटेशन सिस्टम को क्या करो, स्ट्रीमलाइन कर दो, है ना, डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए। तो अब क्या ये अभी क्या सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट को यंग डायनेमिक ऑफिसर्स की जरूरत है। अब वो, है ना, एट द एंड ऑफ सर्विस पीपल आर कमिंग एट द एज ओल्ड एज, है ना, लास्ट फेज ऑफ देयर सर्विस। तो यंग डायनेमिक लोग भी अगर यूनियन में आना चाहे तो देयर शुड बी डिफरेंट मैकेनिज्म्स, स्पेशलिस्ट प्रमोट करना, स्पेशलाइजेशन, डोमेन स्पेशलाइजेशन, ये सब करने की जरूरत है। ठीक है। तो कुछ इनिशिएटिव बढ़िया है, जैसे मान लो लेटरल एंट्री का एक अच्छा एग्जांपल है, तो ये अपन मेंशन कर सकते हैं। The creation of capacity building commission will evolve a harmonious de-siloed approach to improve the capacity of civil servant. तो do you think, yes, तो elaborate करना है, nothing is much। तो इसमें क्या सिंपल लिखना है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया, है ना। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट ये सब हो रहा है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को लिख दिया है। ठीक है, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक, कॉम्पिटेंस बढ़ाएगा, है ना, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, एचआरटी ह्यूमन रिसोर्स हार्मोनाइज करेगा, है ना, ऑडिट करेगा ह्यूमन रिसोर्स को, और ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव हो, नॉलेज वॉलेज है, स्किल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है वो लिखा गया। देन डी सिलोज अप्रोच कैसे कर रहा है, ये सिलोज में नहीं सीख रहा है ना। तो यहाँ पे होलिस्टिक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, कॉपरेशन कन्वर्जेंस पे फोकस ज्यादा है। तो क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, स्ट्रीमलाइनिंग हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा है, पॉलिसी इंटरवेंशन भी हो रहा है, रिकमेंडेशंस भी देगा ये कमीशन कि क्या क्या चेंज होना चाहिए पर्सनल में, प्रैक्टिसेस में। ठीक। तो एक बढ़िया स्टेप है। फिर होता है रेम्यूनरेशन पेड टू द सिविल सर्वेंट एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर सीम्स टू बी इनएडुकेट फॉर इंपैविंग द परफॉर्मेंस कल्चर। एग्जामिन करना है ना। तो कुछ एग्री भी करना है, कुछ डिसएग्री भी करना है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो है दे हैव लार्जर ऑब्जेक्टिव्स, है ना, वेलफेयर है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हिच प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड, है ना। पब्लिक रिकॉग्निशन, पब्लिक रिस्पेक्ट, दोज आर नॉट अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर।
तो एक बैलेंस होना जरूरत है। रेनोवेशन भी इंक्रीज कर दो, इतना मत कर दो कि एमएनसी के बराबर हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो वो आप लिखना है। इक्विटी थ्योरी ये सभी कई लोग कंपेयर करते हैं, कई लोग आईएएस बन के छोड़ देते हैं, कई लोग, है ना, तो कई लोग एमएनसी से जॉब छोड़ के करोड़ों का पैकेज छोड़ के आईएएस बनते हैं। तो देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ जो मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड है उसको भी ला सकते हैं। ठीक, रेनोवेशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो प्लान बहुत जरूरी, कंपनसेशन ये सब क्या उसके काम के हिसाब से करते हैं। पे कमीशन सेटअप होता था ताकि सैलरी में लगातार इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब तो इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ओवरऑल क्या होगा, पीपुल आर मोटिवेटेड, है ना। मटेरियल इंसेंटिव दो या नॉन मटेरियल इंसेंटिव दो, जो हम लोग चेस्टर बर्नार्ड का जो पर्सनल इंड्यूसमेंट और जनरल इंड्यूसमेंट और स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट की बात करते हैं, सिमिलर टू दैट आइडिया यू कैन ऑल्सो ब्रिंग आउट इंस्टेड ऑफ दिस जनरल कंटेंट। रेनुमरेशन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड करेक्ट, मतलब किस प्रकार से क्राइटेरिया है, मतलब हाउ डू यू डिटरमाइन द व्हाट काइंड ऑफ सैलरी, हाउ मच सैलरी शुड बी गिवन। मॉनेटरी नीड और ईगो नीड्स को सेटिस्फाई करता है, स्टेटस को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। तो है ना, आजकल क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही कम है ना, इट इज सेड दैट इट इज वेरी लो, है ना। एनपीएम में क्या तो मार्केट ओरिएंटेड आ गया, डिस्पैरिटी आ गया बहुत ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट में। ठीक, तो अभी इससे क्या होगा ना, कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं रेनुमरेशन का। तो अब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते पब्लिक और प्राइवेट को। टेंजिबल बेनिफिट्स तो हम लोग देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स और प्रिविलेज को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो डिटेल स्टडी, आईएम अहमदाबाद का डिटेल स्टडी आता, सेवंथ पे कमीशन। तो ये सब जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें ना कंक्लूजन ये हुआ कि गवर्नमेंट्स को इंक्रीज करना चाहिए। लो स्किल सेगमेंट ये सब कंसर्न है, उसकी सैलरी बहुत कम है। पे हाँ, मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, स्टार्टिंग लेवल पे सैलरी हाई देता है ना, मच मोर देन द प्राइवेट सेक्टर एज फार एज लो स्किल सेगमेंट्स आर कंसर्न। तो नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें जो एंट्री लेवल पे ना सैलरी हाई होता है, मान लो 60,000 70,000 दे दिया, 80,000 दे दिया मान लो स्टाफ को। लेकिन क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में वही 20,000 30,000 से शुरू होता है। लेकिन ये 10 साल में 5 साल में क्या होता है, वो 10 लाख 5 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन ये, है ना, 1 से 1.5 लाख तक पहुंचते पहुंचते, है ना, खत्म हो जाता है। तो प्रमोशनल एवेन्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन एंट्री लेवल अट्रैक्टिव किसका है, गवर्नमेंट सेक्टर का, है ना। वो हो गया। सेकंड, गवर्नमेंट सैलरी क्या होता है, लोअर होता है गवर्नमेंट ऑफिसर सेगमेंट में देन इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो ये कंपैरिजन मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के, अगर ऊपर लेवल हायर ऑफिसर लेवल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या स्टाफ लेवल कर रहे हैं, तो उसमें कंपैरिजन करके एक केस स्टडी है, एक रिपोर्ट है, दैट यू कैन मेंशन। ठीक है, फिर पे कमीशन का कुछ कुछ बातें आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो व्हाट आर द तो बेसिकली कुछ मॉडल्स है, जापान में क्या है, हंगरी में क्या है, जर्मनी कैसे, सिंगापुर कैसे मैनेज करता है, यूएस में क्या सिस्टम है, दैट यू कैन मेंशन ब्रीफली। ठीक, लेकिन अब मतलब वही है कि अल्टीमेटली पब्लिक सर्वेंट वो आता है, विनोद जैसे सीएजी विनोद राय ने बोला कि दोज हु वांट टू अर्न मनी डोंट जॉइन द पब्लिक सेक्टर, गो फॉर एन प्राइवेट सेक्टर, गो एंड अर्न मनी। हियर यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ जॉब, नेचर एंड डिमांड ऑफ द वर्क इज डिफरेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हैज बिकम मोर आईसीटी एंड मार्केट ड्रिवन rather than focusing on autonomy, empowerment, and protection of risk-taking behavior of the, so that civil servant can contribute to the level of potential। अब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नाम पे क्या हो रहा है, सिर्फ, है ना, डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द पोटेंशियल और स्किल्स लेवल ऑफ सिविल सर्वेंट। तो ये कमेंट करना है, मतलब डू यू थिंक, है ना, डू यू थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आर ओनली, है ना, बिकमिंग ओनली मार्केट ड्रिवन, ओनली आईसीटी बेस्ड, डज इट फोकस ऑन द सिविल सर्वेंट एम्पावरमेंट और नॉट, ऑटोनॉमी दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है ताकि पोटेंशियल को अचीव किया जाए। तो यू एग्री एंड डिसएग्री बोथ, है ना। तो लैकिंग क्यों है उसको, पावर का डिवॉल्व एंड डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो, प्रिंसिपल हाँ ऑफ बिल्कुल, सब्सिडियरिटी भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी होना चाहिए, डेलीगेशन है ना, डेलीगेशन यस। ऑफ अथॉरिटी है। तो दोज आर द थिंग्स दैट यू कैन मेंशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या है, क्यों है, आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट करते हैं ताकि ओवरऑल क्या हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, है ना। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव, अब ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर लेवल प्रोसीजर और बिहेवियरल लेवल पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या, स्ट्रक्चरल प्रोसीजर पे तो लार्जली रिफॉर्म का फोकस किस पे रहा है, स्ट्रक्चरल या प्रोसीजर पे। आईसीटी ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, री इन्वेंटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो वो हो रहा है, लेकिन बिहेवियरल पे फोकस नहीं है। ठीक, तो वो एक जैसे आरसी और हुवर कमीशन ये सब क्या बोला, क्लासिकल बेस पे ज्यादा चेंजेस रिफॉर्म सजेस्ट किया गया। ठीक, तो रिफॉर्म क्या होता है, मैनिपुलेटिव चेंज। तो अब इसमें अल्टीमेटली हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में कई सारे कमिटी सेटअप किया गया। तो मेंशन सम ऑफ द कमिटी, जैसे गोरेवाला कमेटी है, तो उसमें एक एफिशिएंट और इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। संथानम कमेटी के आधार पे करप्शन के खिलाफ, है ना, प्रिवेंशन और पीसीए एक्ट आया था 1962 का। फिर, है ना, हनुमंत कमेटी, उसने भी क्या
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, कोठारी कमीशन बोला कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या चेंज करो, है ना, सरकारी कमीशन और पूंजी कमीशन का बात हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन बढ़िया। ठीक, तो करंट हम लोग क्या, दीज आर द वेरियस कमिटीज एंड कमिटी दैट हैज बीन रिकमेंडेड वेरियस रिफॉर्म्स मेजर्स, है ना। रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला है, 360 परफॉर्मेंस, ये सब जितने एग्जांपल है दैट यू हैव टू मेंशन। तो इसमें क्या देख रहे हैं, आईसीटी ये सब का फोकस किस पे ज्यादा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ऑटोनॉमी एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा। अब जैसे आईसीटी आ गया, प्रगति आ गया, तो यू आर ट्राइंग टू मोर कंट्रोल, बायोमेट्रिक्स लगा दिया, तो ओवरऑल कंट्रोल और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है इंस्टीड ऑफ प्रमोटिंग द ऑटोनॉमी और एम्पावरिंग द ऑफिसर्स। ठीक, तो ये होता है पार्सल फंक्शन या इंटीग्रिटी ये सब। तो चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर क्या होता है ना, उसको ट्रांसफर कर दिया 55 टाइम्स दूर कर सकते हैं, ये सब जो एग्जांपल दिया हुआ अशोक खेमका को, मोर देन 50 टाइम्स ही हैज बीन ट्रांसफर। तो बोनाफाइड एरर के लिए भी एसपी गुप्ता को कोल सेक्रेटरी था, ही वाज पनिश्ड। तो दैट में डिसेंट इंसेंटिवाइज ना, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और ये सब पोटेंशियल अचीव करने के लिए ये सब क्या डिस्करेजिंग, दैट यू हैव टू राइट कि जो ऑटोनॉमी या जो इंडिपेंडेंस या इनकरेजमेंट इनेबलिंग सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए, रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। अल्टीमेटली इफ द सपोज यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल आर फैसिलिटेटेड इनेबल टू टेक इनोवेटिव मेजर्स क्रिएटिव स्टेप्स, है ना, बोनाफाइड एरर को हम लोग और मालाफाइड और बोनाफाइड में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऑल द ऑफिसर विल पुट देयर बेस्ट। एंड इफ ऑल द स्टाफ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द big public organization without having capability to use the talent of the individuals who are working. So many talented people are getting into the civil services, but government is not able to utilize the talent or the innovative creativity of the officers. That is a big challenge for every government, है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या इतने सारे टैलेंटेड ऑफिसर जा रहा है, लेकिन वो फंसा हुआ है ना, पॉलिटिसाइजेशन और फेवरेटिज्म नेपोटिज्म ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस इज इम्पैक्टेड, है ना, दैट यू कैन मेंशन। ई समीक्षा इज ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म टू एनहांस द ई एफिशिएंसी इन द प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ई समीक्षा बस क्या एक स्पेसिफिक कोई भी आ सकता है, एमआईएस हो गया, ई समीक्षा हो गया, प्रगति हो गया, सेवोत्तम हो गया, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, है ना, प्रोग्रेस को मेजर करना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे ध्यान रखता है, तो कैसे इनहेंस करता है मॉनिटरिंग बढ़िया। हाँ प्लीज। सर ये जो क्वेश्चन था हम्म, ये ऊपर वाला, उसमें ये सारी कमिटीज भी बता दी हैं। क्वेश्चन हाँ के वो डिमांड के हिसाब रिफॉर्म, से कमिटीज लिखने की वैसे जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस एक टॉपिक है ना, यस तो ये दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या होता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म है ना, या सर वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर का रिफॉर्म। नाम हो गया, लेकिन जो हाँ क्वेश्चन का डिमांड है, नहीं, इज क्वेश्चन के नॉट डिमांड रिक्वायर्ड। में तो सिर्फ आईसीटी के ऊपर है हाँ नहीं, आईसीटी है कि इसके लेकिन, अलावा भी कुछ है हाँ कि नहीं है। वो हिस्टोरिकल एक कंटेक्स्ट सर ने बेसिक्स लिख दिया, बेसिक्स उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि जितने भी हम रिफॉर्म मेजर्स लिए ना, उसका या तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जस्ट प्रोसीजर पे ज्यादा मेंशन ध्यान। भी कर जस्ट मेंशन हाँ करना ही इनफ रहेगा ना। हाँ, एक दो कमिटी, एलैबोरेशन की जरूरत नहीं होती नहीं है, जरूरत नहीं है, बस मेंशन क्योंकि कर दो। डिमांड कुछ और है क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल, मेन वही है कि हमको इस पे फोकस ज्यादा करना है, बिहेवियरल एटीट्यूडनल यस। चेंज या एम्पावरमेंट ये सब पे। और राइट सम एग्जांपल, ऐसा नहीं सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म आया, है ना, विसिल ब्लोइंग आया, तो देयर आर यस। लॉट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल एससीटी और इस सब में भी कई सारे ग्रीवेंसेस है। मान लो चतुर्वेदी था ना, संजीव चतुर्वेदी, उसने एम्स में करप्शन हाईलाइट कर दिया, तो कई सारे रिफॉर्म भी ऑफिसर्स के एक्शन के कारण हो रहा है ना, दैट यस। यू कैन। और इस समीक्षा को जनरल है ना, इसको बस फीचर्स लिख देना कैसे एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल इज टू इन्फोर्स डिसिप्लिन इन द सिविल सर्विसेज इन डिस्चार्जिंग ऑफ देयर फंक्शन। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल क्यों है, कोड ऑफ कंडक्ट है ना, इन्फोर्स करता है, लीगल पनिशमेंट है अगर वायलेट करोगे, तो इन्फोर्स करता है डिसिप्लिन को, है ना, ताकि वो फंक्शंस को डिस्चार्ज कर पाए। तो डू यू थिंक कंडक्ट रूल हैव फेल टू इन्फोर्स डिसिप्लिन? अगर मान लो फेल नहीं होता तो इतने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है ना, या फिर इतना इनएफिशिएंसी, करप्शन, नेक्सस, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म क्यों है? व्हाई देयर इज लैक ऑफ indiscipline, why there is indiscipline in the organization, why conduct for is not effectively implemented? तो उसको आपको फेलियर भी बताना है, बट यू हैव टू आल्सो सम हाईलाइट सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। यानी लेटर में तो हो रहा है लेकिन स्पिरिट कहीं ना कहीं मिसिंग है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट तो बहुत बढ़िया है ना, सेक्शन 144 आ गया, एफआईआर ऑनलाइन कर दिए, लेकिन जो रियल सेंस में आता है ना, सबस्टेंस कहीं ना कहीं लैकिंग है, दैट यू कैन मेंशन। तो सिविल सर्विसेज, लॉ एंड एथिक्स दोनों है ना, तो अल्टीमेटली जैसे मान लो एक ऑल इंडिया और सिविल सर्विस, तो बेसिक ये आपका फैक्चुअल एस्पेक्ट है। फीचर्स क्या होगा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डिवोशन टू द सर्विस, ये सब जरूरी है
है ना। और उसके बाद हम लोग क्या होता है कि ये पॉलिटिकल नेचर मेंटेन करना, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, ये सब मेंटेन करना जरूरी है। ठीक, तो डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या होता है, मेजर या माइनर, मेजर लेवल पे क्या और माइनर लेवल पे क्या। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ किया तो उसको नौकरी से भी निकाल दो, कंपलसरी रिटायरमेंट कर दो, डेड्यूट्स को बाहर कर देते हैं, जैसे पुलिस में परफॉर्म और पेरिस वाला कॉन्सेप्ट था, पुलिस में भी अपन कई सारे इंसेंटिव दिए गए। तो कंडक्ट रूल का मोर ओरिएंटेड टुवर्ड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना, फॉल्ट फाइंडिंग है, नॉट फैक्ट फाइंडिंग, है ना। तो वहां पे हम लोग मॉरल या प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी पे फोकस ना करके बल्कि प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी पे, आपने ये लॉ क्यों नहीं फॉलो किया, ये रूल क्यों नहीं फॉलो किया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द, तो देयर इज आल्सो गोल डिस्प्लेसमेंट या लैक ऑफ फोकस ऑन द मेन एसेंस ऑफ द गवर्नेंस। तो वो सार प्रॉब्लमेटिक, और हम लोग क्या अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सबको खत्म करो। तो डिस्पाइट हैविंग द कंडक्ट रूल, व्हाई डू वी हैव दिस, है ना। तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव द एथिकल कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स स्पिरिट ऑफ लॉ में इंप्लीमेंट करना जरूरत है। ठीक, सिविल सर्विस सोशल जस्टिस इंश्योर करे, प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी को सॉल्व करे। तो जो एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है ना, वो सबस्टेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सब कुछ होना चाहिए। या होलिस्टिक कॉम्पिटेंस बिला बात हम लोग, उसमें भी किरण अग्रवाल कमेटी ने इक्विटी और एफिशिएंसी, एथिक्स, ये सबको हाईलाइट किया है। फिर एग्जामिन द रिकमेंडेशन, सिंपल रिकमेंडेशन है, स्टेबल टेन्योर क्यों चाहिए। तो स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली है ना, ऑल ऑफ यू हैव आल्सो इमेजिन, ये फास्टर फ्रीक्वेंट अगर चेंज होगा तो हम क्या काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी काम करने के लिए आपको है ना, यू शुड हैव सम एनफ नंबर ऑफ टाइम, देन ओनली ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। हाउ डू यू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिसर, है ना, यू आर वेस्टिंग द टैलेंट, यू आर ट्राइंग टू, है ना, reduce the or limit the productivity, innovation capability of the officer. So civil servant need to have some kind of stability of tenure so that he is able to come up with a certain innovative measure. Give him time, है ना, give him some time and then assess the performance। एक दो साल का, चलो आप मान लो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMMR, स्कूल इनरोलमेंट में इतना है, हेल्थ में इतना स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस बता दो, हमारा टारगेट ये है। And after I know 6 months or after 1 year, we'll assess how much you are improving on various parameters. This is how you bring out the objectivity in the performance appraisal. If the officer is not performing, then you take some action, है ना, or give him, if he needs more resources, enable them also. So there are various aspect of, stability of tenure is also very important। वो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ना, इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाओ, 2-3 साल का टेन्योर मिले। ठीक, तो इसमें ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को क्या करना है, कम करना है। तो अब लेकिन क्या हो, स्टेबल टेन्योर अफेक्ट क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को, डायनेमिज्म को। क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट, सपोज यू आर द CM एंड यू वांट सर्टेन डिस्ट्रिक्ट टू डेवलप faster or some technical requirement is that you need officers, if there is a stability of tenure, officer क्या बोला, I have a stability of tenure, I cannot go to that place, let me be here। तो वहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं एक फ्रीडम होना चाहिए। सपोज यू आर द हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप मान लो, स्टार्टअप है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, यू हैव 50 एम्प्लॉइज, है ना, तो अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग काम दिया, लेकिन बट यू कम टू नो दैट दिस एम्प्लॉय इज गुड एट दिस, है ना, एट सर्टेन टेक्निकल स्किल्स ही हैज, you are not able to find, now you want to bring that individual into that। So that autonomy and freedom should be given, flexibility should also be there, but it should not be misused, है ना, because a state always needs talented officers and at different positions in different kind of exchange, disaster like scenario आ गया, internal security threat आ गया, cyber security वाला talent। तो there are talent mobilization also, transfer posting is not always a negative term, officers are circulated, good officers are sent to different districts। तो बट इट शुड हैव मिनिमम टेन्योर, है ना, मिनिमम 1-2-3 साल का होना चाहिए, सो दैट ही इज एबल टू ब्रिंग आउट सम, एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल। ठीक, और इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस होना जरूरत है। तो सिविल सर्विस हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ममार क्या, इसके बारे में लिखना है, कोई रिकॉर्ड जो भी पर्सनल इवेंट्स होता है ना, इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो वो क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम फ्यूचर जनरेशन फेस ना करे, है ना, तो इनर वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट होता है, नॉलेज बेस क्रिएट करेगा। ठीक, तो दीज आर द सम ऑफ द रिसेंट इनिशिएटिव, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इंडीज द एफिशिएंसी, और जो नॉलेज बेस है, डोमेन है, दैट को उसको इंडीज कर देगा, दैट इज हाउ यू हैव टू डील। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन तो है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो अल्टीमेटली क्या देखे हमने यहाँ पे, कंटेंट का यूज क्या देख रहे हैं, सिंपल, अगर आपने जितने भी ना टॉपिक्स के कीवर्ड्स तैयार कर लिए, है ना, देन यू कैन
You can just write any kind of answer. कुछ भी क्वेश्चन आता है तो कंटेंट वही है, एंड कीवर्ड्स तैयार होने चाहिए आप. इसमें सर लास्ट Yes. वाला क्वेश्चन एक बार बता देंगे. हाँ, लास्ट में क्या है, सिविल सर्विस मेमोर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे ना मेनी ऑफिसर्स आर रिटायरिंग, तो उसका क्या होगा, रिटेन रिकॉर्ड होना चाहिए, पर्सनल नॉलेज का, इवेंट्स का, है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसका खुद का एक्सपीरियंस, कहाँ का क्या प्रॉब्लम फेस किया. इससे क्या होगा कि जितने है ना, जितने इवेंट्स है या इंसाइट प्रोवाइड कराता है, इट कैन आल्सो हेल्प इन क्रिटिकल इंसाइट टू द ब्यूरोक्रेसी को वर्किंग कैसे है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट होता है, एक नॉलेज बेस क्रिएट होता है ना. तो यंग रिक्रूट क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा मिस्टेक को कि भाई पुराने ऑफिसर ने ऐसी गलती किया, हमें नहीं करना है, और जो भी प्रॉब्लम है सिविल सर्विसेज का उसको सॉल्व करेगा, रिफॉर्म को भी फैसिलिटेट करेगा कि दिस इज हाउ, दीज आर द ऑब्जर्वेशन बाय ऑफिसर, दैट हैज टू बी क्रिएटेड, है ना. इंस्टीट्यूशनल आजकल तो टेक्नोलॉजिकल डोमेन है, एवरीथिंग कैन बी, बिग डाटा एनालिटिक्स है ना, या क्लाउड कंप्यूटिंग, या तो सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, है ना. सो दैट मिस्टेक्स आर नॉट कंप्यूटेड, इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक, ये हो गया बस, है ना. बाकी एनीथिंग एनीथिंग यू हैव टू डिस्कस. ठीक है, मतलब क्वेश्चंस तो इसमें मुश्किल तो नहीं लगा ना. देखो स्टार्टिंग का पहला 2-3 चैप्टर में टेक्निकल क्वेश्चन आता है, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. पॉबेट इसलिए आसान भी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस में उतना डिफिकल्टी नहीं है बाकी टॉपिक्स में, एक्सेप्ट 3-4-5 जो टॉपिक्स है स्टार्टिंग है, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट. और इसमें करंट का भी यूज बहुत ज्यादा है ना. यू शुड बी एबल टू लिंक द करंट एंड द थ्योरेटिकल, थ्योरी को लिंक करना है. यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, वन सच टॉपिक वेयर यू हैव टू कनेक्ट द थ्योरी विद द प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज, इसमें आपको लिखना है. Okay, so any more doubt, or we can conclude. ठीक है, तो मतलब फील आ रहे हैं ना, क्वेश्चंस है ना, अप्रोच करना आसान है, या एनीवन, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. सर मेरे जो कोचिंग था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कवर्ड नहीं है. जैसे मैं मॉडल आंसर्स देख पा रही हूँ, इवन क्वेश्चंस देख पा रही हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द कंटेंट. Just add on the keywords, whatever we have discussed, you try to make the notes of keywords, and that will be acting as a value addition also. That is important. Okay. ठीक है, मतलब पूरा देखो, जो भी टॉपिक है ना, ट्राई टू विजुलाइज इन ए मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव बोथ, है ना. कि अब कोई भी टॉपिक है वो एक एस्पेक्ट को टच कर रहा है, एंड जो अब मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर क्या होगा, जितने स्टाफ्स है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जब विजुलाइज करते हैं ना, जितने अलग अलग एस्पेक्ट है ना, बिहेवियर से लेकर स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, है ना, सारे एस्पेक्ट उसी के आसपास बात हो रही है, जितना भी पॉबेट का टॉपिक्स है ना. विट्रो विल्सन के आइडिया को ध्यान रखना है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पे फोकस. ठीक है. सर यहाँ चलो. पे एक आंसर में 4 E's वाला दिया था, उसमें लेकिन इथोस लिखा हुआ है. हाँ नहीं, वो किरण अग्रवाल Effectiveness. कमेटी, किरण अग्रवाल कमेटी ना, तो किरण अग्रवाल कमेटी ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या चेंज होना चाहिए, है ना. तो दैट इज डिफरेंट. ठीक है सर. चलो, ओके. एनी अदर, है ना, एनी डाउट, और विल कंक्लूड. ठीक है, समझ आ रहा है कुछ, कोई प्रॉब्लम. यस सर. ठीक, अदर्स. आ रहा है सर. हाँ ठीक है ना. श्रुति, आर यू एबल टू गेट. चलो ठीक है ना, विल मीट टुमारो एंड विल टेक अप अनदर, है ना. यस सर. हाँ चलो बढ़िया. तो अगला टेस्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे. जस्ट ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चंस दैट आई विल से, है ना. आई हैव ऑलरेडी सेड, आई थिंक इसके बाद का जो टेस्ट है ना, 6th नंबर टेस्ट, प्लीज ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, ताकि ना मजा आए, है ना. आई वांट योर रिस्पांस आल्सो इन बिटवीन. ठीक है, चलो, ओके. थैंक यू थैंक यू एवरीवन. सर. थैंक यू सर. गुड नाइट. थैंक यू सर.